30,000 students, 2,000 teachers, and 1,500 by virtue of the tireless effort and commitment of our visionaries. Today, the Pillai Group of institutions has a presence in every important aspect of education and has proudly entered into their 50th Golden Jubilee year of service to the nation. The Mahatma Knight Degree College of Arts and Commerce, Chembur, is the social arm of the Pillai Group of institutions, catering to the needs of the underprivileged students who work during the day and give them an opportunity for higher education to complete their studies at night. Friends, in today's difficult and challenging times of the corona pandemic, there is a large onus on us, the teaching fraternity. Lockdown is there, but the teaching has not stopped. As educators, we have to not only resource ourselves, but also resource our students to face this new paradigm shift. With this, it is indeed Hello. my proud privilege to introduce our resource person for Hello. this morning session, academician, trainer, advisor, and life coach, Dr. Prithviraj Desai. A postgraduate in economics with a PhD in the area of mutual funds from Mumbai University, Dr. Desai is a teacher of economics and has been awarded the Best Teacher and Trainer Award for spreading financial literacy. He has been associated with financial markets since 2004 as an investor and has been working as an independent financial advisor since 2016. Dr. Desai has conducted several seminars on financial wellness, basics of share market, basics of mutual funds, and career guidance. He will be talking to us today in the area of financial wellness in the context of the corona pandemic. Hello. I welcome you, Prithviraj sir, Uh-huh. for this session this morning. Are, uh, are all the participants on? You can join through Facebook. I We have sent the link. again request all of you to please put your videos off as well as your audio because we are yet getting slight disturbance. Thank you. Over to you, Eknath sir. Now I request our resource person, Dr. Prithviraj Desai, to start the session. And all the participants are requested to off their videos. Videos and audios should be off, so it will not disturb our session. Thank you very much, sir. Prithviraj Desai, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Good morning, all of you. मेरे सभी शिक्षक मित्रों को मेरा नमस्कार और सबसे पहले मेरा चरण स्पर्श मैडम आपको कि ऋषि कपूर जी तो चले गए लेकिन एक उम्मीद छोड़ गए हैं. एक मूवी है 102 नॉट आउट. तो पन्ना मैडम आपके आशीर्वाद से मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स भी अपने 102 नॉट आउट चल रहे हैं और लाइव स्कोर लता मैडम बता सकेंगे कि कितने लोग हमारे पास फेसबुक पर भी हैं. So madam, really heartiest congratulations to you and to the entire team. It is said we have to burn the midnight oil to keep the day bright. So last night they were really burning the midnight oil. Entire team of Padma madam, Eknath sir, Parag sir, Lata madam, अपने रवि सर थे, शुक्ला सर थे, पूरी टीम और मैडम के नेतृत्व में. और मैडम का ऐसा है कि एक बार उनका नेतृत्व जब आता है तो आपके आने से आ जाती है चेहरे पे रौनक और वो कहते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है. सो मैडम रियली सैल्यूट टू यू कि आपने ऐसा एक कार्यक्रम रखा है और मुझ जैसे एक अदने से व्यक्ति को, एक छोटा सा खिलाड़ी हूँ, एक छोटा सा व्यक्ति हूँ इस रंगमंच का और इसमें मैंने फाइनेंशियल वेलनेस चुना है. आज जब सब कुछ अनवेल चल रहा है तो मैडम ने बोला कि सर क्या टॉपिक लेंगे, तो मैंने बोला मैडम वेलनेस विल बी अ बेटर टॉपिक क्योंकि वेलनेस की हम सबको जरूरत है. सो पेंडेमिक इज गोइंग ऑन बट जैसे सड़क पे पुलिस वाला काम कर रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए सब लोग ताली बजा रहे हैं. बट एक मेरे दिल में खटक है
कि मेरे शिक्षक मित्रों के लिए आज तक किसी ने ताली नहीं बजाई। घर पे रहकर जूम पे लेक्चर्स लेकर हम लोग घर पे रहने वाले बच्चों को आज भी बिजी रख रहे हैं। वरना मैडम थोड़ा आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचती है, पहुंचाइएगा कि एक बार कुछ ताली और थाली हमारे शिक्षकों के लिए भी बच जाए, आप और हम सभी खुश हो जाए कि हम लोग सभी ये सब मेहनत कर रहे हैं। घर से हम लोग असाइनमेंट्स चला रहे हैं, घर से हम लोग जूम पे लेक्चर्स चला रहे हैं, कोई लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम वन एंड ऑल। अभी वेलकम का वर्ड शुरू करने के वक्त ही मैंने देखा मेरे परम मित्र विजय महिड़ा सर, हु इज इंचार्ज प्रिंसिपल ऑफ एलजी कॉलेज घाटकोपर, ही हैज जस्ट लॉग्ड इन। सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक इंडिविजुअल नेम्स, बट इतना समझ लीजिए कि जो भी आज स्क्रीन पे हैं वो सब मेरे दिल में है। So welcome one and all the dignitaries, all the principals, all the HODs, all the teachers, सबको इस शिक्षक का साष्टांग प्रणाम। So आज का सेशन है फाइनेंशियल वेलनेस पर। तो मैं थोड़ा मजाकिया इंसान हूँ, इसीलिए मेरी हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक रहती है। तो थोड़ा सा आपको ये नहीं लगना चाहिए कि पन्ना मैडम ने फाइनेंशियल वेलनेस रखा था कि स्टैंड अप कॉमेडी रखा था। अब जो भी हो जाए आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे, या तो स्टैंड अप कॉमेडी एंजॉय करके। और लोग हैं तो मानता हूँ कि इसका कार्यक्रम है, बट शरारत का दिन है, शनिवार है, तो मैडम विथ योर परमिशन आई कैन बी लिटिल लिबरल। आई अंडरस्टैंड इज वेरी वेल, बट थोड़ा सा अगर कहीं शरारत हो जाए मैडम तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आज के तारीख में जब तक पेंडेमिक का कोई सोल्यूशन नहीं आता है, कोरोना का कोई सोल्यूशन नहीं आता है, तब तक लाफ्टर इज द ओनली मेडिसिन दैट वी हैव। मैंने 15-20 डॉक्टर से पूछा कि क्या सोल्यूशन हो सकता है कोरोना का, बोले सर एक ही है, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बोला ठीक है साहब, वो तो हम लोग करते ही हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट माय सपोर्ट पर्सन, my only lawful legal wedded wife, no confusions in that, to on the screen. So jo log, most of you have switched off your video, very much thankful for that. Most of you are on mute mode. I hope I am audible to everyone. तो आपके यहाँ पे एक चैट ऑप्शन है, तो जैसे आप मोर करके एक बटन दबाएंगे उस स्क्रीन पे, तो एक चैट ऑप्शन आ जाएगा, और उस चैट ऑप्शन में जाके आप यस यस नो नो बोल सकते हैं। जैसे हमारे रमेश तड़वी सर ने लिखा है, करेक्ट सर, टीचर शुड बी अपलॉडेड अ लॉट। सर टीचर तो हमारा सबसे बेचारा गरीब इंसान है, उसको कोई सुनता नहीं है, उसको कोई ताली नहीं बजाता है। ओके, किंजल मैडम ने लिखा है क्लियरली ऑडिबल। ओके, थैंक यू किंजल मैडम, सब लोग यस कह रहे हैं, पक्का सर। बस ऐसा ही सिलसिला चलता रहे, मैं आपसे वर्चुअली बात करता रहूं, राइट। और एक ही बात कहूंगा शुरुआत में कि अगर तुम साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, राइट। तो फाइनेंस तो सबको पता है, बट फाइनेंस विद फिलोसॉफी टच एक छोटा सा प्रयोग आज करना चाहता हूँ, राइट, कि अगर तुम साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। फाइन, सो आई विल रिक्वेस्ट माय सपोर्ट सिस्टम, माय लाइफलाइन रूपल देसाई, who is a co-host for the session, to share the screen. So you can just go to the share screen option. At the bottom there is a screen option. Yeah, screen. Okay, start now. Then you go to your WhatsApp. These instructions are only for the co-host. So you go to the 4A cell option. ओके, प्राजक्ता मैडम ने पहले ही बोल दिया, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग लेक्चर। क्या बात है मैडम, इतना तारीफ पहले से मत कीजिए, मेरे को परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। खुश हो जाए तो थोड़ा सा ताली वाली बजा दीजिएगा, और अगर परेशानी हो जाए तो पर्सनल व्हाट्सएप पे गाली दे दीजिएगा। और टीचर हमारा ताली और गाली दोनों के बीच का सफर रोज ही करता है। Okay, so now we will start with the thing. You can take the orientation cross, and now I think everyone is able to see the first screen. सबके सभी डाउट सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस आप साथ दीजिए और हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे। और इसमें आज के सेशन का ये फर्स्ट स्क्रीन है, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल वेलनेस का बात कर रहे हैं। So first of all, I would like to formally thank Mahatma Knight Degree College of Arts and Commerce for giving me this wonderful opportunity to talk to my fraternity. जैसे आज सुबह मैं बड़ा खुश था लेक्चर के लिए तैयारी करते वक्त, तो मेरी मम्मी जो रहती हैं मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ रहता हूँ, तो मैंने मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या बात है आज बड़ा खुश है, तो मैं बोला आज मम्मी ऐसी बात है कि मैं अपनी बिरादरी से मिलने जा रहा हूँ। तो बोले किधर मिलने जा रहे हैं, लॉकडाउन है ना, तो
तो बोला अपनी बिरादरी से मतलब मेरे 100 से ज्यादा शिक्षक मित्र हैं, वो लोग आज मुझे जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाले हैं, नए पुराने बहुत सारे दोस्त मिलने वाले हैं। मम्मी ने बोला बेटा आशीर्वाद है मेरा और तू सक्सेस हो जा। So we will talk about financial wellness and we'll start with the session now. तो होता ये है साहब कि जब फाइनेंशियल वेलनेस की बात हम लोग करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है वो है कि व्हाट इज सेविंग्स एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। So I know many of you are stalwarts in the finance field, so I am talking in front of many stalwarts, but एक छोटी सी कोशिश हम लोग उसको बेसिक से समझने की कोशिश करें। So first question is, what is the difference between savings and investment? So saving is one word, investment is other word. So what are your views? You can type. I know I'm troubling you a bit by making you type, but थोड़ा सा ये हम लोग का technical training भी हो जाएगा कि how we can do chat also. So there are two words, savings versus investment. So savings or investment versus लिखा है मतलब it is not the same. But then the question arises, what is savings and what is investment? See, both the words are different. So any messages regarding this? What are your opinions? कि saving क्या है, investment क्या है? Investments will give you returns. Kinjal ma'am said that. Okay, ma'am. Good. So investments will give you returns. Okay, very nice. Investments तो हो गया कि returns देता है. अच्छा. और दूसरा, then what is savings exactly? तो दूसरा एक बड़ा सा ID है. I will request everyone to change their rename themselves. When you go to the option of participants, तो उसमें आप अपने आप को क्लिक करेंगे, you can change your name. जैसे रोनाल्ड पैट्रिक सर ने कहा सेविंग्स पैसा बचाओ and investment is profit return. Very true. सोनल अनंत पावस्कर मैडम said you can withdraw savings at any time. Madam, you can withdraw investment also at any time. Krupaksha madam ने कहा investment is second type of savings. Savings is money which you keep aside. But in investment not unspent part of money. Investment is doing for our future time. More return in investment. Savings are for long term. Okay, I'm just trying to gauge the sense of the audience. That's it, nothing more than that. Investment gives us profit. Okay, पूजा तिवारी मैडम ने बहुत अच्छा लिखा, सिमिन बाबा मैडम ने लिखा savings are long term. Okay, fine, very nice, very nice, very nice. प्रज्ञा मैडम ने लिखा savings income minus expenses. प्रज्ञा निखलजे मैडम 100 marks to you. आपने मेरा स्लाइड कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया ना कहीं से? Okay, investment gives you safety. Fine. Okay, तो XY सर ने लिखा saving save us in lockdown. Okay sir, saving is parting with liquidity. ये कोई इकोनॉमिक्स ने लिखा है, saving investment is parting with liquidity. Okay, many messages, many messages. I think I will copy paste all this and I will do the reading also myself. So पढ़ना मैडम, जब इतने समझदार लोग थे तो मुझे फाइनेंशियल वेलनेस में बुला के तो आपने मेरे को टफ टाइम में डाल दिया. अब ये तो ऐसा हो रहा है कि एक छोटा सा बच्चा सब माहिर बैट्समैन और बॉलर्स के बीच में खड़ा रह के अपना 2-5 रन का स्कोर मारने की कोशिश कर रहा है. चलो ठीक है, 1-2 4 और 6 तो हम भी मार के जाएंगे. फाइन. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप एवरीवन इज हैप्पी विद दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बोल भी नहीं सको और ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ रिसीविंग एंड पे रहना है. ओके, थैंक यू रोनाल्ड सर. सो सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक हमारे शिक्षक मित्र ने बता दिया. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी. एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, बिकॉज इंग्लिश में क्या लगता है कि थोड़ा सा मैं सेल्समैनशिप कर रहा हूँ ऐसा लग जाता है, और हिंदी हमारी मातृभाषा है तो अच्छा लगता है, और मराठी में और मजा आएगा. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स मराठी ऑल्सो. एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड मराठी प्लीज टेल मी. और मेरी मराठी थोड़ी मुंबईया मराठी है, तो कहीं ग्रामर वगैरह की गलती हो जाए तो मार्क्स कट मत करना, मेरे मम्मी को कंप्लेंट मत करना. फाइन. ओके, सो सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है? सी वेरी सिंपल. जैसे हमारे एक शिक्षक मित्र ने बताया कि सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. सबको पता है कि बचत क्या है. बचत मतलब के आमदनी में से जो खर्चा काट के बचता है, दैट इज कॉल्ड एज बचत. राइट? सो यस सर, जय महाराष्ट्र. तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का फर्क. सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल ओपन द सस्पेंस फॉर दैट. सस्पेंस कुछ नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है. सो मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से ये स्लाइड, अगर आपको गलती से पसंद आ जाए कोई स्लाइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट स्लाइड ऑल्सो. पूरा कॉपी करने का राइट्स है. मेरा ये स्लाइड्स पर साहब कोई भी कॉपीराइट नहीं है, और जब अपनी बिरादरी से मैं बात कर रहा हूँ तो फिर क्या कॉपीराइट रखूं.
कभी मुझे भी कोई प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए होगा, मैं भी तो आपका स्लाइड शो कॉपी कर लूंगा ना। हम लोग का बड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, हम लोग क्वेश्चन पेपर्स भी शेयर कर लेते हैं। ओके, सो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, बेसिकली सेविंग मनी इज पुटिंग असाइड on a regular basis. You spend less money than you earn and you put the rest in your saving account at your bank. तो अब ये यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेविंग्स इज इक्वल टू, पीपीटी सेंड करणार मॅडम, करणार प्राजक्ता मॅडम, सगळ्यांना करणार पीपीटी सेंड. मी 2 दिवस तुमच्या बरोबरच आहेत, तुम्ही मला पाठवलं नाही बाहेर या ग्रुप मधून, तोपर्यंत मी इकडेच राहणार आहे, राइट. तो सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. ये एक फॉर्मूला सुना सबने है, हमने पढ़ा सबने है. अब ये एक फॉर्मूला जो है ना, इसका सक्सेस और फेलियर का मैं आपको हिसाब किताब समझाना चाहता हूँ. रेसिपी फॉर सक्सेस, रेसिपी फॉर फेलियर. तो पहले मैं बात करूंगा रेसिपी फॉर फेलियर की. परफेक्ट रेसिपी फॉर फाइनेंशियल डिजास्टर, फाइनेंशियल फेलियर इज, इनकम में से पहले आप एक्सपेंडिचर करो, बच गया तो सेविंग्स करो. दैट इज परफेक्ट फॉर्मूला फॉर डिजास्टर. जो मेरे सीनियर, मेरे बुजुर्ग टीचर्स बैठे हैं, वो सब मुंडी हिला कर रहे हैं अपने घर में, मुझे पता चल रहा है कि हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर. ओके मैडम, ऐश मैडम, आपको वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है, आपकी ऑडियो ऑफ होगी. सर एकनाथ सर, इफ यू कॅन चेक द पार्टिसिपेंट्स नेम्स. एका दोघांनी व्हिडिओज ऑन केलेत पण ऑडिओ नाही ऑन केला, तर तुम्ही त्यांना हेल्प टेक्निकली करू शकाल तर सर. I can also check. There is a professor Pankaj Jain, his audio is not on. प्रियंका पाटिल मैडम का ऑडियो ऑन नहीं है. पूजा तिवारी मैडम ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ है. 1+70, दिनेश आत्माराम सर, ऐश मैडम, इन तीनों चारों का ऑडियो ऑफ है, तो शायद उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही होगी. तो वी विल वर्क आउट ऑन द टेक्निकल पार्ट्स ऑल्सो. तो परफेक्ट फॉर्मूला फॉर फेलियर, परफेक्ट फॉर्मूला फॉर फेलियर इज, इनकम आ गई, पहले मैंने एक्सपेंडिचर किया, उसके बाद में सेविंग्स का सोचा. दैट इज परफेक्ट फॉर्मूला फॉर फेलियर. और आजकल क्या है मैडम के मूवीज भी ऐसे बन रहे हैं ना कि जिंदगी ना मिले दोबारा, और यंगस्टर्स का एक स्लोगन है, यू ओनली लिव वंस, YOLO. तो बोले किसने 7 जन्म देखा है यार, हम तो यही जन्म जीने वाले हैं, अगला जनरेशन छोड़ो, 7 जन्म छोड़ो, खाओ पियो मजा करो, और बुढ़ापे में क्या करो, किसी के रहमो करम पे जियो. अब ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरे शिक्षक मित्रों को, बुजुर्गों को मैंने देखा है, बुढ़ापे में नी ऑपरेशन के लिए उसी हॉस्पिटल में से चैरिटी लेना पड़ता है कि जिसके फाउंडर को उन्होंने कभी FY BCom SY BCom में पढ़ाया था. तो मेरे किसी शिक्षक मित्र की ये हालत ना हो कि उसे किसी की चैरिटी पे जीना पड़े, उसे किसी की मजबूरी से मजबूरी होकर फायदा लेना पड़े किसी का. नो, माय एंटायर मिशन इज टुवर्ड्स दैट. सो परफेक्ट एग्जांपल, थैंक यू सोनिया मैडम. रेसिपी फॉर फेलियर इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग. मतलब पहले खर्चा करो फिर सेविंग करो. साहब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट फाइनेंशियली आपका डिजास्टर होने का चांस 99% है. दिस इज फॉर्मूला फॉर फेलियर. फॉर्मूला फॉर सक्सेस इस थोड़ा सा सोच को बदलना है. सोच को ऐसे बदलना है कि पहले आप इनकम में से सेविंग्स निकाल दो. इनकम में से आप पहले सेविंग्स निकाल दो, बचेगा उसमें से एक्सपेंडिचर करो. आपका सक्सेस फाइनेंशियली होगा, और जरूर होगा. नहीं होगा तो मेरा नंबर मैं एंड ऑफ द सेशन में शेयर करूंगा, आप मुझको फोन करना, मैं ये लेक्चर्स लेना बंद कर दूंगा. यू हैव टू फर्स्ट थिंक ऑफ सेविंग्स एंड देन, थैंक यू पद्मा मैम, ओनली यू कैन मेक इट दैट. सो इनकम में से सेविंग्स पहले आप साइड में निकालो, ये जरूरी है साहब. हमारी भारतीय संस्कृति कहती है पहले सेविंग्स करो, बचत करो. हमारे यहाँ बचपन में पिगी बैंक दिया जाता है एज अ गिफ्ट, ताकि हमको बचपन से सिखाया जाए कि बचत करनी है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी बेसिक. बट क्या होता है कभी कभी हम लोग बेसिक्स भूल जाते हैं. सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस फॉर्मूला. सक्सेस फॉर्मूला, इनकम आई, पहले सेविंग्स का सोचो, उसके बाद एक्सपेंडिचर का सोचो. और फेलियर फॉर्मूला है, इनकम में से पहले एक्सपेंडिचर का सोचो और बाद में सेविंग्स का सोचो. चॉइस आपकी है साहब, आपका रूल है. 12:30 बजे मैं तो चला जाऊंगा, कुछ अपनी यादें, कुछ अपने विचार छोड़ के जाऊंगा. समझ में आए तो ठीक, नहीं तो बाकी तो अल्लाह मालिक. ओके, सो savings is very clear. Any doubts in savings? Please type your message if there is any doubt in saving. If no doubts, you can say no. Okay, most of them are saying no, no, no. ठीक है, चलो पहला बॉल तो अपना ठीक चला गया, तो आगे भी चला जाएगा अच्छे से. ओके, थैंक यू सर. तो नाउ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली? इसके अलग अलग नाम हैं. इन्वेस्टमेंट को हम लोग अपना निवेश कहते हैं. मराठी में आपण त्याला गुंतवणूक असं नाव दिलंय.
कि पैसे गुंतवले, हिंदी में कहते हैं कि मैंने पैसा निवेश किया, गुजराती में हम लोग कहते हैं पैसाનું મેં રોકાણ કર્યું, राइट? तो ये निवेश, ये गुंतवणूक, ये रोकाण, ये क्या है एग्जैक्टली? आप अपने बचत किए हुए पैसे को कोई ऐसी जगह पे डालते हो जहां पर वो आपका पैसा ग्रो होगा। उस अरेंजमेंट को हम लोग सेविंग्स कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि मैं टीचर हूं और एक अनएडेड कॉलेज में काम करता हूं, और अनएडेड कॉलेज में मुझे महीने की 12,000 रुपया तनख्वाह मिलती है। आई एम MA नेट सेट क्लियर, फुल्ली टेक्निकली क्वालिफाइड, और मेरे को 12,000 पगार मिलती है, राइट? अब वो 12,000 से भी मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकता हूँ, थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है। उस 12,000 में से मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपया बचाता हूँ साहब, महीने का 500 रुपया। तो 500 रुपया भी मेरा सेविंग्स है, यानी 12,000 तनख्वाह मेरे खाते में जमा होती है, मैं 11,500 रुपया में घर चलाता हूँ, 500 रुपया सेविंग्स करता हूँ। 500 रुपया सेविंग्स करते भी मैं उस 500 रुपए को अगर सही जगह पे निवेश करूँ ना, आई कैन बिकम अ करोड़पति। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस साहब। 500 रुपया पर मंथ आप अगर साल भर इन्वेस्ट करेंगे 6,000 होगा। ऐसे अगर आप 60 साल तक इन्वेस्ट करेंगे ना, तो यू विल इन्वेस्ट 3,60,000 रुपीज। कैन एनीवन गेस कि महीने का 500 रुपया, साल का 6,000, 60 साल तक 3,60,000 इन्वेस्ट करने पर उस 3,60,000 के इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा? आइए हम और आप मिलकर खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। यू कैन टाइप योर मैसेजेस। सिंपल गणित आहे, सबको समज में आ गया? 500 रुपये महिन्याचे मी वाचवले, त्याची गुंतवणूक केली, वार्षिक 6,000 ची गुंतवणूक केली, प्रत्येक वर्षी अशी गुंतवणूक मी करतो, 60 वर्ष मी पैसे गुंतवले, माझे 3,60,000 रुपये गुंतवलेले झाले। म्हणजे माझी गुंतवणूक होती 3,60,000 रुपये मी टाकलेले पैसे। पण जेव्हा 60 वर्षानंतर ते पैसे मी मॅच्युअर झाल्यावर काढायला गेलो त्या संस्थेकडे, तर व्हॉट विल बी द मॅच्युरिटी व्हॅल्यू? ओके, XY सर सेड 5 crores. Power of compounding, Bharat Gonjare sir said. Okay, very nice, very learned and very highly qualified audience. Depends on rate of interest, annuity calculations has been done, interest rate matters. Okay साहब, XY सर ने बोला, बहुत अच्छा बोला सर, 15% के हिसाब से 5 करोड़। सर कौन बनेगा करोड़पति? तो आप बनेंगे करोड़पति, राइट? डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस यही सोच बदलनी है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं जाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं जाना है, मेरे को रेट ऑफ रिटर्न्स में जाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से भला नहीं होगा सर, आप लॉन्ग टर्म की जर्नी नहीं कर सकते। मैं यहाँ से हरिद्वार साइकिल लेके गंगा स्नान करने जाऊंगा ना, तो गंगा में मैं पहुंचूंगा या मेरी अस्थियां पहुंचेंगी उसका गारंटी नहीं, बट मैं यहाँ से हरिद्वार अगर फ्लाइट में जाऊंगा ना, तो देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि मैं पहुंचूंगा। हाँ, प्लेन क्रैश हो गया तो बात अलग है, फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा। सिंपल सी बात है साहब, 125 रुपया एक हफ्ते का, 500 रुपया महीने का, यानी एक हफ्ते का 125 रुपया में बचत करता हूँ, महीने का 500 रुपया बचत करता हूँ, और अगर ये मैं 60 साल तक कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट है 3,60,000 का। अगर 15% रिटर्न जैसे सर ने बोला वैसा मेरे को मिलता रहे, ऑन एन एवरेज मेरा 1.25 करोड़ रुपया जमा होगा। सो आपने समझ लिया पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। आज थोड़ी वक्त की मैं पाबंदी रख रहा हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप सब समझदार लोग हैं, तो उनके सामने मैं क्या बोलूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज अ वंडर, एंड दिस इज अ वंडर। जैसे कभी होता है कि मैं सैटरडे नाइट अपना बॉयज पार्टी में जाता हूँ एंड आई हैव सम फन। तो जब मैं 3 पैक्स डाउन होता हूँ और श्रीमती जी का फोन आता है, तो बोलती है क्या कर रहे हो, घर कब आ रहे हो? बोला बस अभी 1.25 करोड़ का प्लानिंग करके घर आ रहा हूँ। तो एक बार उसने रोज मेरे को बोला कि रोज पूछती थी क्या है 1.25 करोड़, क्या है 1.25 करोड़। तो एक बार मैंने समझा दिया कि मैं अगर एक पैक कम पीता हूँ, 125 रुपया एक पैक का मैं बचाता हूँ, और ऐसा मैं हर हफ्ते करता हूँ, तो मेरे को 1.25 करोड़ रुपया मिल जाएगा। अब श्रीमती जी को बात समझ में आ गई। दूसरे महीने फोन आया, मेरे को बोलता है भाई कि तू 1.25 करोड़ तो बचाता है, लेकिन ये 1.25 करोड़ बचाने के लिए 3 करोड़ पहले बर्बाद क्यों करता है? मैं बोला कुछ बातें नशे में ही समझ में आती। तो सैटरडे है, लॉकडाउन है, नशे पे पाबंदी है, बट बातों के नशे पे कहाँ मना है, राइट? ऐसे अपना किडनी लीवर सब कुछ सेम रहता है, सेफ रहता है, और नशा भी हो जाता है, राइट? और इसमें मेहरबानी करके आप मेरा बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। ऐसा नहीं कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो करोड़पति नहीं बन सकते हैं।
नाही तो कल को लोग जाके अपने घर पे बोलेंगे पृथ्वीने सांगितलं अगोदर दारू प्यायचं मग करोडपती व्हायचं. असं काहीच नाहीये. द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. विदाउट कंज्यूमिंग लिकर ऑल्सो यू कैन बिकम करोड़पति. तो मेरे लेक्चर्स के बाद लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा पंगा हो जाता है. मेरे को भाभियों के फोन आते हैं, सर तुम्ही काय आमच्या नवऱ्याला सांगितलं, तो आता दारू प्यायला सुरुवात केली त्यांनी, तो म्हणे आता करोडपती व्हायचंय वगैरे वगैरे. असं काही नाही साहेब. तुम्ही 4 कोटी पण वाचवू शकता 4 पॅक न पिता, आणि 3 पॅक पिऊन 1 पॅक न पिता पण तुम्ही 1 कोटी वाचवू शकता. चॉईस तुमची आहे. कारण 4 कोटी वाचवायचे की 1 कोटी वाचवायचा, राइट. तो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे भाई लोग या मेरी कुछ समझदार बहनें जब दारू देखेंगी ना, तो उनको उसमें 1 करोड़ दिखेगा. दैट 60 ml इज इक्वल टू 1 करोड़. अब मैं देखता हूँ कितने लोग दारू ज्यादा पीते हैं. नशा मुक्ति इससे इफेक्टिव हो नहीं सकती, right? So that was just a Saturday mid morning humor. Madam, sorry for that if I have hurt your emotions, but I hope बात करने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पीने में प्रॉब्लम है ना. Okay, so next slide madam. So savings investments difference is very clear to you, right? Now we talk about CAGR. ये मेरे शिक्षक मित्रों को पता है, बट जो डेकोरम होता है तो मैं समझा दूं. See, CAGR is compounded annual growth rate. Back madam. So CAGR is compounded annual growth rate. मतलब कि आप जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करते हो ना, सबसे पहले पूछना चाहिए सवाल कितना देती है. बराबर. जैसे हम लोग शादी करने जाए तो पहले पूछते हैं ना, गणेश सर सेड समथिंग, ओके. तो उसमें शादी करने जाए हम लोग तो पहले पूछते हैं ना भाई लड़की में क्या गुण है, क्या करती है, कितना काम कर सकती है. ओके. गणेश देशमुख सर हैज आस्क्ड द क्वेश्चन कि सर व्हेन यू से 60 इयर्स इन्वेस्टमेंट, देन एट व्हाट एज वी शुड स्टार्ट टू इन्वेस्ट. सर 20 साल की उम्र में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो, प्लस 60 मतलब 80 में जब आपका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा उसके आगे करोड़पति वर्ड आ जाएगा. और बच्चे का जन्म हुआ आपके घर में, उसी दिन से आप ये कर दो. और सर ये 60 साल तो लंबा टाइम है, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका. 2020 मैच भी खेलेंगे सर, बहुत कुछ बताना है, टेंशन मत लो. तो ये CAGR जो है, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. अक्सर क्या होता है कि हमारा शिक्षक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो समझता है, बट काम के घाई में ये नहीं समझता है कि भाई कितना उसमें वैल्यूएशन है. सो 2 एग्जांपल्स हैं. एक मैं अपना टेबल आपके सामने पेश कर रहा हूँ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बिना आगे सेशन में मजा नहीं आएगा. सो प्लीज फोकस, आई रिक्वेस्ट. और नहीं समझ में आए तो मेहरबानी करके पूछ लीजिएगा. आपके समझ में कोई कमी नहीं है, मेरे समझाने में कमी है तो आपको नहीं समझ में आएगा. ओके ओके. हाउ इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन, वो भी समझाऊंगा सर. सो नेक्स्ट ये जो स्लाइड टेबल है इसको आप गौर से देखिए. देयर आर 2 एग्जांपल्स. वन इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंडेड रिटर्न्स. मेरे पास 100 रुपया था. अब आप थोड़ा लेफ्ट ऑफ द टेबल पे फोकस कीजिए पहले, सिंपल रिटर्न्स पे. एंड आई वेंट टू द बैंक एज अ लेमैन एंड आई टोल्ड देम कि भाई कितना मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा. उन्होंने बोला 10%. हालांकि बैंक 10% अभी देती नहीं है. 10% देने वाली बैंक में आप इन्वेस्ट भी मत करना. तो उन्होंने 10% बोला, तो वो सिंपल रिटर्न्स था. 10% से फर्स्ट ईयर मेरे को 10 रुपीज मिला इंटरेस्ट, दैट इज 10% ऑफ 100 रुपीज, तो 110 हुआ. फिर सेकेंड ईयर 110 मेरा अमाउंट था, लेकिन मेरे को 10% ही रिटर्न मिला ऑन माय बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑफ 10, तो 120 हुआ. फिर थर्ड ईयर में 10% और ऐड हुआ 100 रुपीज का, तो 10 रुपीज यानी 130 हुआ. मैडम कुछ करेक्शन है तो बता देना. मैं 4 बार 80 पास करके मैथ्स में टीवाई में पहुंचा था. मैथ्स का और अपना ज्यादा जमता नहीं है, तो ये तो मैंने टेबल किसी से बनवाया था मैथमेटिशियन से. सो 100 plus 10 plus 10 plus 10, that comes to 130. This is simple returns. So my question is, on an investment of 100 rupees with a simple returns of 10%, did I, yes Priya madam, thank you, same pinch, तो हम लोग कितना मिला? 30 rupees मिला. Everyone is clear with this? Yes or no? अच्छा, राइट साइड में जाइए, कंपाउंडेड रिटर्न्स की बात करते हैं. तो कंपाउंडेड रिटर्न्स में क्या हुआ कि 100 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर रिटर्न वाज 10%, दैट इज 10 रुपीज. तो मेरा 100 रुपया जो मुद्दल था, माय प्रिंसिपल इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 110 एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर. ओके. फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब सेकेंड ईयर की शुरुआत हुई ना, तो माय प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड टू बी 110, राइट. तो उसमें ये हो गया कि मेरा 110 में 11 रुपीज ऐड होगा. तो आप बोलोगे सर 11 रुपीज कैसे ऐड होगा? सिंपल है, रिटर्न्स इज 10% बट कंपाउंडेड रिटर्न्स. तो 11 रुपीज मतलब 121. तो थर्ड ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर आई हैव 121 रुपीज एज माय प्रिंसिपल.
तो उस पे 10% यानी कि 12 रुपया 10 पैसा मैंने राउंड ऑफ कर दिया 12 रुपीज. सो नाउ माय वैल्यूएशन इंक्रीजेस टू 133. यानी कि सिंपल रिटर्न्स में मेरे को 30 रुपीज मिला और मेरे को कंपाउंडेड रिटर्न्स में 33 रुपीज मिला. दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग. My humble request to all my learned friends, any query in this. This is very simple, very basic, no gimmick in this, but I hope it is very simple. So now if I happen to ask you, which is a better option, to keep your money on simple returns or compounded returns? Which is a better option, simple or compound? Naturally compound. Right? So compounded returns in the finance world are popularly called as CAGR, that is compounded annual growth rate. Like I have specialized in mutual funds as an asset class. As mutual funds के जो भी projections होते हैं ना, they are CAGR. यानी आपका बैंक FD आपको बोलता है और आपका म्यूचुअल फंड आपको बोलता है 7%. It does not mean the same over a long period of time, because that 7% will give you returns like left hand side और म्यूचुअल फंड CAGR will give you returns like right hand side. तो सोच आपकी है, राइट? आपका जीवन, आपके नियम, आप सोच लो. So shall we go ahead? I think this is very clear to you. All people are from experienced background, so no issues, right? So no doubts. अब बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की या एसेट क्लास की. जैसे हमारे एक मित्र ने लिखा था कि सर PPF में भी कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलता है. अब उसमें सर प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं ना, सो इट शुड बी मेंटेनिंग माय परचेजिंग पावर. चलिए ठीक है, बहुत हैवी नहीं डोज लें, हम लोग थोड़ा थोड़ा डोजेज लें. पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की बात करते हैं. मान लीजिए मेरे पास पैसा है, मैं निवेश करना चाहता हूं, तो क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास? पॉपुलरली दीज आर द एसेट क्लासेस दैट वी हैव इन इंडिया. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हर आदमी का सपना एक घर हो अपना, और मुंबई में खुद का घर भी बना दिया ना तो बात खत्म. जैसे हमारे गुजराती भाषा में कहते हैं कि मुंबई में रोटलो मले पण ओटलो ना मले. रोटलो मतलब रोटी मिल जाती है, बट ओटला मतलब घर नहीं मिलता. मैडम, इट इज इजी टू अर्न अ रोटी, बट इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ हाउस. और शिक्षकों की मैं व्यथा जानता हूँ. लोकल ट्रेन में ऑन एन एवरेज मुंबई का शिक्षक 1 से सवा घंटा ट्रैवल करता है. क्यों? जिस अच्छे एरिया के अच्छे कॉलेज में वो पढ़ाता है, ओके, फेनिल सर सुवाच्य, तो उन्होंने उसी एरिया में घर लेने की उस शिक्षक की कैपेसिटी नहीं होती है. मैडम, महाभारत की बात है. द्रोणाचार्य जो गुरु थे कौरवों के और पांडवों के, उन्होंने द्रौपदी के फादर से, जो द्रुपद राजा थे, द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी, तो द्रुपद राजा से जो उनके स्कूल फ्रेंड थे, मतलब कि द्रुपद राजा फादर ऑफ द्रौपदी एंड द्रोणाचार्य स्टडीड इन द सेम स्कूल. एक बार द्रोणाचार्य जी ने उनकी शादी के बाद जब अश्वत्थामा का बर्थ हुआ, तो द्रुपद राजा से जाके बोला कि मेरा बच्चा अभी थोड़ा बड़ा हुआ है और उसको दूध पीने की इच्छा है, तो एक गाय मुझे दान में दे दो. मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ, ब्राह्मण भी हूँ, शिक्षक भी हूँ. एक गाय मुझे दान में दे दो, मेरा बच्चा दूध पिएगा. मैडम, तब द्रुपद राजा ने कहा था उस त्रेता युग में या जो भी युग था कि टीचर का बेटा दूध पिएगा. कटाक्ष था ये, और ये कटाक्ष मैडम आज भी हकीकत है. आज मेहरबानी है 7th पे कमीशन की कि हम लोग दूध को नहीं तरसते हैं, बट जब हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देने की बात होती है, हमारे बच्चों का अच्छा कोचिंग क्लास या अच्छे कॉलेज में एडमिशन की बात होती है, हमारे बच्चों को विदेश जाने की जब बात होती है, तो मेरा शिक्षक आज भी किसी के पास दान मांगने के लिए मजबूर हो जाता है. मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी शिक्षक ऐसा दान मांगने के लिए मजबूर हो. वो अपने दम पर जिए, उसके बच्चे अपने दम पर जिए, और उसका बच्चा उसको ये गाली न दे कि तुम और कुछ धंधा करते और कुछ करते तो कम से कम मैं विदेश जा सकता. क्या तुमने टीचरी की, क्या तुमने मास्टरी की? आई डोंट वांट दैट टू हैपन. मैडम, मैं शिक्षकों के खानदान से हूँ, 3 जनरेशन से हम लोग शिक्षक हैं. मैंने ये सब समस्याएं देखी है अपने घर में. तो ये एक सोशल मिशन लिया है कि फाइनेंशियल वेलनेस जहां तक हो सके घर घर तक पहुंचाने की इच्छा है, और आज आपने मुझे माध्यम से मौका दिया है. सो एसेट क्लासेस, पैसा आ गया अपने पास, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? पहला इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है प्रॉपर्टी में, राइट? पहला इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है प्रॉपर्टी में. प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ये होता है साहब कि हर एक का सपना होता है, राइट? ओके,
प्रिया मैडम के यहाँ 3 लोग पुलिस से हैं, तो मैडम डंडा लेके मारोगे तो नहीं ना लेक्चर के बाद? ओके, तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल, बट प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉपर्टी इज अ बिग गेम। यानी आप मुंबई में आज कहीं भी घर लेने जाओ तो 15-20 लाख से कम में तो घर आना ही नहीं है। 15-20 लाख मतलब कल्याण के आगे या फिर अपना मीरा रोड भायंदर से आगे 15-20 लाख का मिनिमम घर, और अपने टीचर के पगार में साहब उतना ही घर बनता है। ईमानदारी से, मैं भी टीचर हूँ, मुझे पता है। तो ये घर एक अपना सपना है, राइट? ओके, अब इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज अ बिग गेम। अब इसमें ये होता है बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि सेंट्रल रेलवे लाइन में एक सबर्ब है बदलापुर। आई होप एवरीवन हैज हर्ड अबाउट द प्लेस बदलापुर। तो मान लीजिए आज मैं शिक्षक हूँ, मैंने हिम्मत करके 20 लाख रुपए का घर ले लिया बदलापुर में, और उस घर में से मुझे अगर पैसा निकालना है वापस, मैं रहता हूँ घाटकोपर में मम्मी के घर में, और उसमें मुझे पैसा लेना है, तो क्या करूंगा? अब मुझे 2 लाख की जरूरत है, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि उस घर में से बाथरूम बेच दूं। बोले यार चलो बाथरूम जो है वो देते हैं, या फिर घर जो है वो उसको हम लोग अपना बालकनी बेच देते हैं, या बोला चलो उधर जाएंगे तो वाइफ को प्रॉमिस किया है कि हम लोग वो सेकंड होम के तौर पे यूज करते हैं, किचन में तो खाना नहीं बनाएगी तो किचन बेच देते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी आप उसको हम लोग बोलते हैं ना, दागीना खरीदते हो तो उसको तोड़ नहीं सकते, पूरा दागीना बेचना पड़ेगा। तो मुझे 2 लाख की जरूरत है तो मुझे 20 लाख का घर बेचना पड़ेगा। So that is a problem. So property is a big investment. It is little costly also as far as interest is concerned. और दूसरा ये होता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जिनका भी घर लेने का सपना है, घर ले चुके हैं, लेना चाहते हैं, मैं आप सबको पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस भी देने तैयार हूँ। So don't worry, I am available for personal guidance also. Padma madam has permitted me that I can talk 1-to-1 also after the session. Thank you madam for that. So property is a big investment. आप ये सोचो कि मैं EMI का पैसा भर के इन्वेस्टमेंट बना रहा हूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, दैट इज अ मिस्टेक। क्यों? क्योंकि EMI देने तक घर आपका नहीं है, घर बैंक का है। जिस दिन 20 साल बाद EMI खत्म होगा उस दिन घर आपका बनेगा साहब। तब तक तो आप एक्चुअली किराए के घर में रह रहे हो, ये सोच के चलो मेंटालिटी, राइट? सो उसके बारे में बहुत कुछ है। If time permits in today's or tomorrow's session, I will elaborate on home loan. That is one of my personal favorite and a pain point for everyone. I know that. मुंबई में हर तीसरे पर्सन के ऊपर होम लोन है, राइट? कोरोना हर तीसरे पर्सन पर नहीं है, हार्डली 100 में से एक को भी नहीं है, बट होम लोन तीन में से एक पर है। ओके, सो गोल्ड प्रॉपर्टी इज वन इन्वेस्टमेंट, गुड इन्वेस्टमेंट, डिसेंट रिटर्न्स, बट इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड बॉल गेम। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरा गोल्ड की बात करते हैं। अब गोल्ड तो अपना सबसे पुराना एसेट क्लास है। आपने 4 बार मेरा हाथ देखा होगा तो ये अंगूठी भी देख ली होगी किसी ने। साहब ये सगाई की अंगूठी है, राइट? अभी 3 दिन पहले एंगेजमेंट एनिवर्सरी थी, तब 8,000 का था गोल्ड, आज 45,000 का हो गया, बट ये मैं बेच नहीं सकता। जिस दिन बिका ना, वाइफ कैन फाइल अ डिवोर्स केस अगेंस्ट मी फॉर मेंटल हैरेसमेंट, सेइंग दैट यू सोल्ड माय गिफ्ट ऑफ एंगेजमेंट, हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू बी क्रूअल। तो साहब जब दागीना खरीदते हैं ना, तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में क्या होता है, दागीना खुशी में खरीदते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, दागीना खरीदा, सगाई हुई, दागीना खरीदा, शादी हुई, दागीना खरीदा, अपना थ्रेड सेरेमनी हुई, दागीना खरीदा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब बेचने जाए ना, तो उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, राइट? तो उसको हम लोग बेच नहीं सकते। और थोड़ा सा पहले ही माफी मांग लो कान पकड़ के आप सबके, हाथी से गन्ना खींचना, हाथी के मुंह से गन्ना खींचना और औरत के पास से दागीना मांगना बेचे नामुमकिन है, राइट? हाथी के मुंह से गन्ना नहीं खींच सकते आप, औरत के पास से आप दागीना नहीं खींच सकते वापस, और खींचना भी नहीं चाहिए साहब, ये प्रॉब्लम है। अपनी संस्कृति कहती है घर में आया हुआ सोना वो लक्ष्मी है, उसको बेचना नहीं चाहिए। सोना चांदी कैसे जमा करना वो भी आपको समझा दूंगा। बहुत कुछ है कहने के लिए, बस आप यूं ही साथ देने का वादा करो, मैं मस्त नगमे लुटाता रहूं, ठीक है? तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए? यू कैन इन्वेस्ट गोल्ड में, इन्वेस्टमेंट कब कीजिए? जब आपको गोल्ड ऑर्नामेंट नहीं खरीदना है, आपको बुलियन खरीदना है। यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ज्वेलरी। ज्वेलरी इज फॉर कंजम्पशन। See, please try to understand. I am hitting a technical point now.
ज्वेलरी इज अ कंजम्पशन थिंग, that is for use, that is for use. But if you want to make investment in gold in particular, it is to be invested in the form of bullion, जिसको हम लोग सिक्का बोलते हैं, कॉइन बोलते हैं। तो छोटा सा कॉइन होता है, फिर अपना बार होता है, फिर कैडबरी होती है, राइट, फिर ब्रिक होती है, थैंक यू नीता मैडम, फिर अपना कैडबरी होती है। और अपना टीचर तो उतना कैडबरी तक पहुंचेगा नहीं, टीचर अपना वो मेलोडी खरीद लेना गोल्ड की तो भी काफी है। आज के डबल डिजिट इन्फ्लेशन में वो कैडबरी तो पॉसिबल नहीं है, वो किसी जमाने में पहले वाले लोग करते थे, राइट। सो बुलियन जो है, त्याला आपण नाणं म्हणतो मराठी भाषेत, राइट, मतलब सिक्का होता है। तो उसमें क्या है, इमोशंस अटैच नहीं है। जैसे मान लीजिए नोटबंदी के दिन मेरे वाइफ का बर्थडे था, राइट, 8th of November is a very memorable day for me because my wife was also born on that day in 1980 and in 2016 there was नोटबंदी। अब उसी दिन समझो मेरे पास 32,000 होता और मैं अब वो 32,000 बढ़ते बढ़ते पिछले दिनों 45,000 का हो गया। तो मैंने बोला मैडम लॉकडाउन खुलेगा, हम लोग घूमने जाएंगे। तो बोला कैसे जाएंगे? बोला आपका वो जो कॉइन है ना वो सेल करेंगे तो जा सकते हैं। तो वो भी बनिए की बेटी है, मेरे को बोला कैसे जाएंगे, वो तो गिफ्ट है ना। बोला एक काम कर, गिफ्ट का कॉस्ट प्राइस था 32,000, वो तेरे को मैं दे देता हूँ, नफा मेरा 15,000, नफे से अपन घूम के आएंगे। मेक सेंस? काय चुकलं असेल तर सांगा गणित माझं। बोला देख 32,000 मेरा इमोशंस कितने का था, 32,000 का, वो तेरा इमोशंस एज इट इज तू ले ले 32,000, और जो ऊपर का 15,000 है ना उससे अपन घूम के आते हैं, राइट। सिंपल है, सीधी बात है ना भाई। तो उसने बोला थोड़ा बेटर घूमने जाते हैं। तो बोला मेरे जो इमोशंस है उसमें से थोड़ा पैसा मेरे को दे दे, थोड़ा तू कॉम्प्रोमाइज कर, थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। अगर 15,000 बोलेगी तो महाबलेश्वर जाएंगे, अगर 45,000 देगी तो हम लोग फॉरेन जाएंगे। यस फैनिल सर, गुज्जू माइंड। और ऐसा कोई मोनोपोली नहीं है गुज्जू माइंड का प्रॉफिट पे, आज सबको फॉर्मूला बांट के जाएंगे प्रॉफिट का। जलेबी गाठिया खाओ, दिमाग चलाओ, बात खत्म, राइट। तो वैशाली मैडम इज हैप्पी, वाओ, अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम फीमेल, इट्स अ ऑनर, गुड बैलेंस, राइट। अब उसको उस दिन बर्थडे पे अगर मैंने एक अंगूठी लेके दी होती 10 ग्राम की, और मैं उसको बोलता चल घूमने जाते हैं, तुझी अंगठी आपण विकूया, माहित होतं नशीब माझं, मास्तराशी लगीन केलं तर सगळं सोनं विकावंच लागतं। आय कैन सी अ वेरी गुड स्माइल ऑन पद्मा मैम्स फेस, राइट। तो ऐसी गाली नहीं सुनने की भाई, क्यों अपन गाली सुने? ऑलरेडी एचओडी से गाली सुनते हैं, कभी कभी प्रिंसिपल से, कभी मैनेजमेंट से, तो घर पे भी गाली सुने क्या अपने पैदा ही गाली सुनने के लिए हुए हैं? या टीचर के नसीब में ही गाली सुनना लिखा हुआ है? नहीं भैया। तो गोल्ड इज अ वेरी पॉजिटिव गेम, और आने वाले दिनों में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा भी, सो प्लीज टेक केयर, राइट। ओके, थैंक यू पूजा मैम फॉर बीइंग ओपन टू माय व्यूज। तो अभी भी हस्बैंड से जो भी आप गिफ्ट मांगो ना, उसको सीधा बोलो मेरे को आभूषण नहीं चाहिए, मेरे को अलंकार नहीं चाहिए, मेरे को ज्वेलरी नहीं चाहिए, तू मेरे को कॉइन ला के दे। अच्छा, एक सवाल है अभी, चलो थोड़ा सा मैं भी अपना बोस्टिंग कर दूं, आई डोंट नीड टू ब्लो माय ट्रम्पेट, बट देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड कितने रुपए से हो सकता है? एनी वाइल्ड गेसेस? 5 रुपीज? अरे मैडम इतने में तो कटिंग चाय नहीं आती है। 10,000? ओके, 100 रुपया, ओके। गोल्ड ईटीएफ, जोशी सर ने लिख दिया। वैशाली मैडम 1 ग्राम गोल्ड बॉन्ड कैन बी परचेज, ओके। मैनी गुड आंसर्स फ्रॉम माय टीचर्स, ओके। रविंद्र फड़के सर ने कहा 3,500 पर मंथ, ओके सर। 1,000 rupees, okay, 3,000, okay, okay. If you purchase gold, you can purchase gold online. Yes, yes. Milligrams, yes, yes, yes. वाह 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 मैडम, इन सबके अगर मैं पेपर चेक करने बैठूंगा तो मेरा पूरा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स फ्रेंड्स। 10% ऑफ 2 month सैलरी, अच्छा वो मुझे नहीं पता, आप पूजा मैडम समझा देना व्हाट इज दैट। 12,000 स्मॉल रिंग फॉर किड्स, नो, डोंट बाय रिंग फॉर किड्स। मानता हूं आपके फीलिंग्स उनके लिए बहुत प्रेशियस हैं, पर जब आप 12,000 का रिंग खरीदते हो ना किड के लिए, तो उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं। और जो आप गोल्ड खरीदते हो ना साहब, तो जब गोल्ड का दागिना बनता है ना, तो उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटीज भी होती हैं, और थोड़ा सा उसमें पीतल होता है। तो एक गाना आया था ना, ये दुनिया पीतल दी, ये दुनिया पीतल दी। तो ज्वेलरी देखो ना तो सब अपने आप मन में वो बैकग्राउंड में गाना बजना चाहिए, ये दुनिया पीतल दी। दिखता है सोना पर होता है पीतल, ओके।
तो वो तो पूरा एक लेक्चर ले सकते हैं गोल्ड के ऊपर, राइट? अच्छा, कॉइन इज बेटर टू इन्वेस्ट, यस, थैंक यू सौरभ सर. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड कैन स्टार्ट विथ 42 रुपीज 2 दिन पहले. कैन यू बिलीव दैट? 42 रुपीज. आज सेशन खत्म होने के बाद आप चेक भी कर लेना, गूगल में आप सर्च मारना आपके मोबाइल से GOLD गोल्ड, एंड देयर इज गोल्ड बीज, BEES. ये इतना आप वर्ड से सर्च मारोगे ना, यू वांट मी टू टाइप gold bees? Can one of my friends just volunteer it for me? No sir, Paytm sells gold coins for 4899. Paytm वाला solid महंगे में बेचता है. Yeah, thank you Pooja ma'am, thank you Fenil sir. Gold bees, thank you Mona madam. Gold bees, it is a small unit of gold bought in the digital form on the mutual fund platform. आप पूजा मैडम ने रेट भी देख लिया. मैडम आज का रेट है क्या? 42.55. ओके, तो ये 42 रुपीज एंड 55 पैसे, यानी एक बर्गर के कीमत में, ऑर्डिनरी बर्गर के कीमत में आपको गोल्ड मिल सकता है. बट माइंड यू, गोल्ड का एवरेज प्राइस 4000 का है. डॉक्टर काजल मोहित्रा सेड 42.55. लोगों ने शायद गूगल सर्च मार लिया, यानी सेशन में लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, क्या बात है. तो 42.55 में आपको गोल्ड मिल सकता है ना. तो मान लो कि आज मैं पद्मा मैडम की इधर टिस के लेक्चर्स लेने जाता हूँ, रिक्शा में जाऊं तो 50 रुपया और बस में जाऊं तो 5 रुपया. तो मैं बस में जाता हूँ, रिक्शा में नहीं जाता हूँ. क्यों? मुझको उसमें गोल्ड दिखता है. यानी जो मैं 45 रुपीज बचाऊंगा, तो MNDC के एंट्रेंस करते ही कंपाउंड में मैं बटन दबा दूंगा अपने मोबाइल से और मेरा गोल्ड आ जाएगा. सो इट इज 100th पार्ट ऑफ अ ग्राम. सो इट इज अ स्मॉल यूनिट. यानी 4000 रुपए का अगर ग्राम है तो उसका 100वां हिस्सा, यानी कि 10 मिलीग्राम. Right? This is in the digital form. This is in the form of ETF. It is called as Exchange Traded Fund. ETF, Gold Bees ETF. Nippon का काफी famous है. Right? Right? Okay. So first time very good experience for my view. Fine. Very clear with gold. तो आज के बाद अगर जरूरत हो तो ही ज्वेलरी खरीदिए, वरना कॉइन खरीदिए, बार खरीदिए. राइट? बट इतना ध्यान रखिए साहब, देश की सरकार के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है. अगर फिजिकल में खरीदते हैं तो विद बिल खरीदना, प्रॉपर GST भर के, 3% टैक्स भर के खरीदना आप, ताकि कल को आपके घर पे गलती से अगर रेड भी हो जाए ना इनकम टैक्स का, तो आप बिल दिखा सकते हो कि साहब ये मेरा व्हाइट में परचेज किया हुआ गोल्ड है. हाँ, बाकी आप अगर ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहते हो, ले बेच के लिए, तो उसका भी तरीका बताऊंगा. बट दिस इज फॉर्मल चैनल, कैन बी रिकॉर्डेड बाय सेबी, सो आई विल नॉट डिस्क्लोज दैट नाउ. राइट? देयर इज अ ऑप्शन टू दैट आल्सो. ओके, बट आप अगर पोजीशन के लिए खरीद रहे हो, बाय इट विद बिल. सो गोल्ड पे काफी बात हुई, एंड गोल्ड की तो चमक ही चमक है. और गोल्ड के लिए ऑस्पिशियस डेज भी हैं. अक्षय तृतीया है, दशहरा है, धनतेरस है, उस दिन भी आप गोल्ड खरीद सकते हो. अमास और पूनम, मतलब न्यू मून और फुल को भी आप गोल्ड खरीद सकते हो. कल उसका डिटेल बता दूंगा. वो गोल्ड जो आप खरीदोगे ना, तो मेरी बात अगर सही निकले और ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, जो ग्रंथों में लिखा है, वो सोना कभी आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सोना कभी आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं नहीं कहता साहब, सिर्फ मैंने पढ़ा हुआ है, बड़े बुजुर्गों से सुना हुआ है और अनुभव भी किया है. सो इनफ ऑफ गोल्ड. राइट? अच्छा, देन द नेक्स्ट एसेट क्लास इज FD एंड RD. सो FD इज फिक्स डिपॉजिट, RD इज रिकरिंग डिपॉजिट. ये तो हम जन्म जन्म सॉरी फ्रेंड्स, आई गॉट डिस्कनेक्टेड. तो आई एम अगेन बैक. एवरीवन, सबको सुनाई दे रहा है आवाज अभी? Yeah, there was a disruption. I got disconnected for 10 seconds. Yes, even I got So now am disconnected. I audible? सबको सुनाई दे रहा है? Clear है? Yes, continue. Yes. Done, madam. Shall I proceed? Audible है ना? Yes. Okay. So gold में काफी बात की हम लोग ने. FD RD, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट. आपको पता है फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट पे हम लोग नहीं वक्त ज्यादा गवाएंगे. फिक्स डिपॉजिट, हाँ, इसमें एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन. चलिए, फिक्स डिपॉजिट मिनिमम कितने पीरियड का होता है?
Yeah, sorry for the technical glitches. But ये FD/RD, so FD minimum period is 7 days. FD minimum period is 7 days. अच्छा, अभी चलिए थोड़ा सा सेंटर शॉक. What is the maximum period for which I can put a FD in a bank? मिनिमम तो पता है सब लोग को, 7 days, 8 years, पूजा मैडम 10 years, रविंद्र सर 5 years, Bharat sir 10 years. Bharat sir is a very learned person. Sanket sir, okay. Parth Joshi sir 10 years. Sonal madam 10 years, 6 years. Okay. Maximum period for which a bank will accept FD from you is no, not 20 years, madam, is 10 years. आप 10 साल से ज्यादा बैंक आपके पास से FD एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि बैंक को पता है कि 10 साल में इंटरेस्ट साइकिल चेंज हो जाता है, तो बैंक एट द मोस्ट विल एक्सेप्ट FD फ्रॉम यू फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. How to make a wise use of that also we'll discuss. So FD है, RD है, दोनों एसेट क्लास हैं, बुरे नहीं है साहब, बट लॉन्ग टर्म के लिए बुरे हैं. यानी FD में मैं पैसा रखता हूं, मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलता है 5%, और इन्फ्लेशन कितना चलता है 7%, तो 2% मेरा लॉस है कि नहीं? आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस रियल लॉस, कि मैंने 100 रुपया FD में रखा 5% ब्याज पे, एक साल के बाद मेरा वो 100 रुपया बढ़कर 105 रुपया हो गया, बट महंगाई के वजह से 100 रुपए का मेरा खर्चा जो था वो बढ़कर 107 रुपए हो गया. सो कैन आई बाय द सेम गुड्स विथ माय FD मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 105? नो, आई विल हैव टू पुट 2 rupees फ्रॉम माय पॉकेट. सो इफ इट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, इन माय हम्बल ओपिनियन, it should be used as a short-term investment device and not as a long-term investment thing. Rate of interest are falling, that is again a problem. लॉकडाउन में भी कुछ लोगों को पता होगा, बैंक्स ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिए, एंड दिस इज गोइंग टू अफेक्ट फर्दर. इफ वी आर टू कन्वर्ट फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमी टू डेवलपिंग इकोनॉमी टू डेवलप्ड इकोनॉमी, then it is there. Yes, SWP will come to that. So that has to be done, right? Okay. So FD/RD short term के लिए okay है, long term के लिए मेरी तरफ से thumbs down है. No, please don't do that. Choice is yours. Then shares. किसी को रोना है तो मेरा खंदा अवेलेबल है. हर्षद मेहता पीरियड, केतन पारेख पीरियड, 2008 फॉल, कोरोना फॉल, सब फॉल है, राइट? और सब फॉल ही फॉल है. शेयर मार्केट में ईमानदारी से 2020, यस पूजा मैडम, 2020 इज न्यू फॉल. तो शेयर्स में 95% पीपल लूज मनी. आई रिपीट, RD, यस सर, RD इज अ गुड ऑप्शन, बट फॉर द शॉर्ट रन. गायकवाड़ सर करेंगे उस पर भी बात. सब आप क्वेश्चंस लिख कर रखिए अपने नोटबुक में या तो कहीं मोबाइल में, सब क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. सो शेयर्स की बात यह है कि थोड़ी टेढ़ी खीर है, कब खरीदना क्या खरीदना समझ में नहीं आता है. और ये शेयर्स का कैसा है, वाइफ के मूड जैसा है. मैं घर जाता हूँ ये सोच के, या शेयर्स आई थिंक इज अनप्रेडिक्टेबल. नो, इट इज प्रेडिक्टेबल, इट इज अ साइंस. शेयर्स का मेरे वाइफ मतलब मेरे नहीं, किसी के वाइफ के मूड जैसा है. मैं सोचता हूँ आज घर जाऊंगा, सैटरडे इवनिंग है, एक बहुत बढ़िया डिनर होगा, एक रोमांटिक इवनिंग होगी, और मैं गया और मिला क्या, साबूदानाची खिचड़ी का. आज 11 है, हमारे गुजरातियों में 11 का बड़ा मतलब होता है, तो क्या मिल गया, साबूदाने की खिचड़ी. तो रोमांस के मूड की पूरी वाट लग गई ना. यानी मैंने खरीदा ये सोच के शेयर कि ये तो मेरे को अच्छा लेविश डिनर खिलाएगा, ये अच्छा मेरे को अपना ये करके देगा, रोमांटिक फीलिंग देगा. मालूम पड़ा उसने तो पहले मीटिंग में ही ब्रेकअप कर लिया, राइट? ओके. तो पोस्ट ऑफिस इज ऑल्सो गुड, MIS. तो ये समझ में आया आपको, शेयर्स इज अ साइंस. और शेयर्स के बारे में भी अगर आप कहीं अटके हुए हो, शेयर्स में कुछ प्रॉब्लम है, वी हैव अ बैक एंड टीम हु कैन सॉल्व ऑल योर डाउट्स. और आप टीचर्स के लिए स्पेशल ऑफर है MNDC के थ्रू, इट्स ऑल फॉर फ्री. आपका कितना भी लंबा छोटा बड़ा पोर्टफोलियो हो, उस पोर्टफोलियो का रिव्यू आपको इस लेक्चर अटेंड करने वाले को फ्री में मिलेगा. व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स? यस मैडम, वो तो मेरे दिल के करीब का टॉपिक है, इस पे तो मैंने PhD की है छोटी सी. ओके. तो शेयर्स इज द साइंस. और जो लोग थोड़ा सा ज्योतिष में मानते हैं, ये सबके लिए नहीं है, जो लोग ज्योतिष में मानते हैं, शेयर्स में जिसकी कुंडली में लिखा हो ये शेयर से पैसा कमाएगा वही कमाएगा, जिसके कुंडली में नहीं लिखा है वो नहीं कमाएगा. So anyone wants that astrological advice, will provide you that also, right? So I hope I am creating a lot of curiosity and I will keep my words, don't worry. ठीक है. तो शेयर्स सबके नसीब में नहीं होता है. हाँ, म्यूचुअल फंड की कमाई हर एक के नसीब में होती है. तो शेयर्स का भी आपको सबको ऑफर है.
Anyone wants to discuss their portfolio, wants a portfolio review, advice चाहिए, we'll provide it free of cost. हमारे टीचरों को समृद्ध बनाने का हमने सोशल मुहिम शुरू किया है. ओके, देन सर प्लीज टेल अबाउट म्यूचुअल फंड. यस, हाँ, म्यूचुअल फंड की बात करें. म्यूचुअल फंड तो मेरे दिल के करीब है. ठीक है, म्यूचुअल फंड सदाबहार है. मैं म्यूचुअल फंड को अपनी माँ समझता हूँ. क्यों? माँ जो होती है ना साहब, वो जीवन में मल्टीपल रोल करती है. बट सर देयर इज रिस्क. भरत सर ने लिखा रिस्क. सर, भरत सर, आर यू मैरिड? Which shares are good, I will tell you. तो भरत सर, आप मैरिड हैं और रिस्क से डरते हैं? जिन्होंने शादी की उसने ऑलरेडी सबसे बड़ा रिस्क ले लिया सर. और किसी ने तो बिना अपना ये ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़े ही ब्लाइंड पे साइन कर दिया था, फिर भी उसको 3 एक्के मिले हैं. और जिन्होंने लिव इन करके, रिलेशनशिप करके, सब करके शादी की, ऐसे लव मैरिज वाले भी मैं देखता हूँ मैरिज कोर्ट में मिलते हैं बांद्रा में. तो सर रिस्क तो हर जगह है सर. रिस्क की तो क्या बात है. ये रिस्क को समझाया गलत जाता है सर. रिस्क पे मैं 3 मिनट बोलूंगा आज. क्या कल याद दिलाना भरत सर आप मेरे को प्लीज. ओके, म्यूचुअल फंड को मैं अपनी माँ समझता हूँ. क्यों? माँ जो है ना, वो हर फेज में अलग अलग रोल प्ले करती है. कैसे? माँ जो है ना, वो कभी बहन बन जाती है हमसे बात करने वक्त, कभी वो नटखट बन जाए तो अपनी बेटी के जैसे बन जाती है. बराबर. तो माँ बहन भी है, बेटी भी है. और कभी अगर अपनी लव लाइफ शुरू हो जाए ना कॉलेज में, और माँ दिल के बहुत करीब हो, उससे हम लोग क्लोजली शेयर करें ना, तो माँ अपनी सहेली भी बन जाती है और अपनों को बोलती है, ये हीरो, ये तेरे लायक नहीं है, ये बहुत चालू आइटम है. और वो माँ की एडवाइस जो मान लेना, उसको कभी बांद्रा कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा. बाकी जो माँ की एडवाइस मान के लोग चल रहे हैं ना, आधे बांद्रा कोर्ट में है और आधे साइकेट्रिस्ट के पास है. तो म्यूचुअल फंड भी ऐसा है, हर एक को संभाल लेता है. आप उसको बहन के जैसे भी अपने जीवन में रख सकते हो, उसको बेटी के जैसे भी रख सकते हो, उसको माँ के जैसे भी रख सकते हो, उसको सहेली के जैसे भी रख सकते हो. अच्छा, म्यूचुअल फंड में मेरा सवाल है, मिनिमम कितना रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू होता है? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विथ विच यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? थैंक यू मैडम. 1000 रुपीज. सौरभ सर आप तो बड़े आदमी हैं. तेजल मैडम 500 रुपया. मैडम आप भी बड़े इंसान हैं. ओके. भरत सर 100 रुपया. सर आप लोग, अच्छा सर, सौरभ सर 10 रुपया नहीं, इतनी बेइज्जती मत करो यार. ओके, 100 फाइन, गुड. ओके, वैशाली मैडम सेड अमाउंट. ओके सर, minimum investment in mutual funds, of course not in all schemes but in selected schemes, starts with an amount of just 100 rupees. 100 rupees minimum. यानी 100 रुपया. यानी मैं लॉकडाउन नाही था, सॅटर्डे नाईट, यस 100 कोणी लिहिलं? श्रमिक खरात सर. सर नाईस, सॅल्यूट टू यू सर. पहिल्यांदा मराठीमध्ये एक आकडा मला बघायला भेटला स्क्रीनवर. चांगलं वाटलं, आपुलकी वाटली. 100 रुपये लिहिलं सर. ओके, सो लॉकडाउन नहीं था, सैटरडे नाइट में अपने वाइफ के साथ अपना मरीन ड्राइव चला गया. और हुआ ये कि सब कोने से लोग उठ उठ के बाहर आने लगे नरीमन पॉइंट कॉर्नर पे. गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर. बोला ठीक है, आज मेरा दिन है, मैं बैठूंगा, तुम लोग जाओ घर पे. और वापस आ रहे थे तो वाइफ को बोला, देख बड़ी गाड़ी करेंगे भाड़े पे तो 350 रुपया, छोटी गाड़ी आएगी तो 250 रुपया. तो वाइफ ने बोला 100 रुपया बचा के क्या करेगा, मेरे को गोल्ड लेके देगा? बोला यस माय डियर डार्लिंग, 100 रुपीज में देखो गोल्ड दिलाऊंगा. तू बन मेरी महबूब, तेनू गोल्ड पवा दूंगा. ताज तो नहीं दिला सकता क्योंकि मैं टीचर हूँ, नॉट ए इंडस्ट्रियलिस्ट. तू बन मेरी महबूबा, तेनू गोल्ड पवा दूंगा. तो बायको पण चांगली आहे, समजदार, शिकलेली आहे, सुशिक्षित आहे. बोले आत्ताच घे, तुझं काय नक्की नसतं. सॅटर्डेला तू रोमॅन्टिक मूड मध्ये भरपूर मला प्रॉमिसेस करतो, रविवारी सकाळी तू उठल्यानंतर मला सांगतो गेले ते दिवस, राहिल्यात त्या आठवणी, रात गई बात गई. मी मोबाईलचा ऍप उघडला, लगेच 100 रुपये गुंतवणूक केले. मग बोला आता 250ची टॅक्सी बुक करू का? मग ती बोलली एक काम करूया ना, इकडून 50 रुपये मधून आपण विटीला जाऊया आणि तिकडून 20 रुपयाची तिकीट काढून आपण घरी जाऊया ट्रेनने, तरी पण आपले 180 रुपये वाचतील. त्याचं पण गोल्ड घे ना. अरे बोलो कशाला माझ्या मूडची पूर्ण वाट लावते शनिवारी रात्री, चांगल्या मूड मध्ये घरी जाऊया. एवढं सगळं साठं करायचं नसतं, थोड़ा थोड़ा बचत करना चाहिए. पेट काट के बचत नहीं करनी चाहिए, राइट? तो मजा आया, राइट? सो नेक्स्ट टाइम योर वाइफ सेज कि कुल्फी, तो उसको बोलने का, देख 100 रुपए की कुल्फी तू खाएगी होटल में, 100 रुपए की मैं खाऊंगा. बैड फॉर हेल्थ एंड बैड फॉर वेल्थ. तो एक कुल्फी मंगाते हैं 100 रुपए का, दोनों शेयर करते हैं. तो बोले बाकी 100 रुपए से क्या होएगा? बोले गोल्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे. थैंक यू पूजा पटेल मैडम, एक नंबर.
बराबर, तो खुश है ना। देखो 100 रुपया कुल्फी भी खा ली दोनों ने आधी आधी, ऐसे प्यार बढ़ता है। मतलब वाइफ खुद की होनी चाहिए साहब, वो एक कंडीशन है। और आधी आधी कुल्फी खा ली, खुश हो गए आप, और 100 रुपए से क्या बन गया, गोल्ड भी बन गया। इसको बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। अच्छा आप ये बताइए मुझे, मिनिमम कितने डेज के लिए इन्वेस्टमेंट होता है? माय सेकंड क्वेश्चन। ये ब्रोकर लोग नहीं बताएंगे आपको, मैं भी ब्रोकर हूं, बट मैं ईमानदार ब्रोकर हूं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं बताएगा। थैंक यू फेनिल सर। फेनिल सर आपका नंबर देना, थोड़ा मेरे को आपसे सीखना पड़ेगा। यस, मिस्ट्री सर सेड वन डे, फाइनली वन, ओके। भरत सर सेड वन डे, ठीक है। मेनी ऑफ यू नो, या ELSS 3 इयर्स का लॉक इन है, तो जिनका भी PF कटता है ना, वो लोग थोड़ा ELSS में आ जाइए। कॉल मनी मार्केट, यस सर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे, and that one day in your life can make a lot of difference. मान लीजिए कि 30 अप्रैल को मेरे खाते में मेरी सैलरी जमा हुई और मेरे को 4 तारीख से पहले कोई पेमेंट नहीं करना था। कितने दिन है? 3 दिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 दिन मेरे खाते में सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहा। आई विल गेट 3 to 3.5% पर एनम इंटरेस्ट। बट मैं बैंक को बोलता हूँ 3 दिन की FD करो, बैंक वाला मना कर देता है, नो, मिनिमम 7 डेज। मेरे को 4 तारीख को पेमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो ये 3 दिन के लिए ये मेरी माँ म्यूचुअल फंड आपको बोलती है, आजा बेटा मेरे दामन में अपना सर रख के सो जा, 3 दिन तेरे को आराम मैं दूंगी, और तीसरे दिन जब उठेगा ना तो तेरे को इंटरेस्ट की फ्रेशनेस भी साथ में दूंगा। सो FD-RD जिकडे कमी तिकडे आम्ही साहेब। म्यूचुअल फंड जहाँ FD-RD का लिमिटेशन आता है वहां हम लोग आ जाते हैं, राइट। सो म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग। इस पे मेरा एक 6 आवर्स का मॉड्यूल भी है, जो मैंने काफी कॉलेजेस में भी रन किया है स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए, कि म्यूचुअल फंड्स एक्सक्लूसिव टॉपिक एंड ऑफ म्यूचुअल फंड 6 आवर्स मॉड्यूल। दिस इज नॉट अ मार्केटिंग, जस्ट अ इंफॉर्मेशन। मैडम फिर आप बुलाएंगे, फिर हम आएंगे और 6 घंटा सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। ओके, तो ये सब एसेट क्लासेस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और म्यूचुअल फंड में बहुत कुछ बोलने के लिए मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूं, तो आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, आई विल कंट्रोल माई सेल्फ। बात आती है एंटीक्स की। तो एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है एंटीक। नाउ व्हाट आर एंटीक्स या एग्जांपल्स ऑफ एंटीक्स? चलिए डेफिनेशन नहीं करते हैं। आर्ट, ओके, पूजा मैडम सेड आर्ट। पेंटिंग्स, फेनिल सर सेड पेंटिंग। सर पेंटिंग तो MF हुसैन का होना चाहिए, और टीचर आदमी के लिए वो खरीदना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओल्ड आर्टिफैक्ट्स, हिस्टोरिकल स्टैच्यूज, ओके प्रज्ञा मैडम थैंक यू। और कुछ और कुछ और कुछ? शनिवार का दिन है सर, हिंट दे रहा हूँ, सोच लीजिए। कार्स, यस। कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, यस। वाइन, यस। पाथ सर, चीयर्स। वाइन, collectible objects of high value, necklace, coins, okay, 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 solid, solid, solid. Very learned crowd. I'm enjoying it to the best, madam. Padma madam, I owe a lot to you for giving me opportunity to interact with such a wonderful audience. मेरा कोई भी बॉल है ना, ये लोग खेल लेते हैं। कोई भी बॉल पे मेरा स्टंप आउट नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, चलिए। अच्छा साहब, सब कुछ एंटीक है, पुरानी गाड़ी, पुरानी घड़ी, पुराना घर। किसी के पास ऑडियो कैसेट हो, ऑडियो कैसेट प्लेयर हो, पुराने जमाने का म्यूजिक लवर हो, वो भी एंटीक है। ग्रामोफोन भी एंटीक है। और सब किसी को सुनने से पाप लगे तो आई एम वेरी सॉरी, बट शराब भी एंटीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विंटेज वाइन। एक मान लीजिए किसी पेरेंट ने आपको शराब का बॉटल गिफ्ट कर दिया, हमारे सर लोग को, मैडम लोग को तो देंगे नहीं कोई, तो शराब का बॉटल गिफ्ट कर दिया। या आपके बच्चे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गिफ्ट मिलती है शराब की बॉटल। आज आप उसको समझाना, बेटा ये पिएगा आज नशा देगी, और इसको 20 साल अगर रखेगा ना तो तेरा फॉरेन हनीमून पक्का। क्यों? शराब जितनी पुरानी हो ना उतना उसका रेट बढ़ता है। और साहब ऐसा बोलते बोलते पिछले 2 साल में मैंने 50 ऐसे प्रोग्राम किए हैं फाइनेंशियल वेलनेस पर, और 2-3 खंबे मेरे यहाँ पे भी जमा हो गए हैं। तो एवरी टाइम मैडम आई कम होम विद दैट मोमेंटो, आई टेल माय वाइफ, सेकंड हनीमून, थर्ड हनीमून, फोर्थ हनीमून,
but after 5, 5, 7, 7, 10, 10 years. So शराब पीने में पाप है, बुरा है, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छा बॉटल मिल गया और अगर आपने लिकर को आप कंट्रोल कर सको और उस बॉटल को आप प्रिजर्व करके रखो, 5, 10, 20 साल के बाद यू कैन सेल इट एट अ वेरी हाई प्राइस एंड यू कैन मेक अ फॉर्च्यून आउट ऑफ दैट ऑल्सो. 50 लाख से एक शराब आपकी बिक सकती है. सो सोल्यूशन क्या है? कोई अगर खंबा दे गिफ्ट, अपने जेब से क्वार्टर का पैसा खर्चा करके क्वार्टर लेने का, यस, बेस्ट यूज ऑफ लिकर. माने सर आज तक ऐसा सुना नहीं था ना कभी. नहीं, मैडम है, क्षितिजा मैडम है, क्या बात है, फीमेल से तारीफ हो रही है लिकर की आज. पद्मा मैडम सुन रहे हैं आप? क्षितिजा मैडम, फीमेल, आई थिंक शी इज सेइंग लिकर इज गुड. क्या बात है, सोच ही बदल दी हमने तो शराब से भी ऑप्शन है. तो खंबा मिलेगा, दोज हु कैन नॉट कंट्रोल देयर लिकर, तो उसको क्या करो आप, रख दो मोमेंटो के तौर पे, क्वार्टर खरीदो, पी लो, बात खत्म. ओके, समवन सेड 30 इयर्स. कौन था भाई वो रिसर्चर? ओके, देयर आर पीपल हु हैव डन रिसर्च ऑन दैट आल्सो. I should have met you 30 years before. Okay, so I will not disclose the name. मैडम, I know कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत होता था ऐसा. कोई बात नहीं मैडम, फिर से हो जाएगा, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, बस एक यादगार के तौर पे. अपने बेटे की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आप ले लीजिएगा, राइट? आप भी तो मेरे मम्मी है. ओके, सो एंटीक समझ में आ गया सबको? अपने गांव में कुछ पुराना बर्तन हो पीतल का, तो वो भी एंटीक है. साहब, हमारे घर में रखा हुआ भगवान का मूर्ति भी पुराना हो जाए, वो भी एंटीक है, बट भगवान को हम बेचते नहीं है, राइट? Thank you, Angel Sundar sir. Okay, so I think asset classes are clear to you. So this was the main crux of the session. Okay, we'll move ahead to the next part. Any doubts in this? No. अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज मैंने डिस्कस किए, थोड़ा सा आपको जूम करके देखना पड़ेगा, उसको पिंच आउट करके, छोटा लगे तो, बट उसको आप नजरअंदाज कीजिए. रिटर्न्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, द कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट. इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कितना रिटर्न देते हैं, और हम लोग तो इंडिया वाले हैं, मारुति कार के फैन हैं, गाड़ी खरीदने से पहले पूछते हैं कितना देती है, राइट? तो रिटर्न्स पे कितना, रिटर्न्स पे कितना, इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न्स मिलेगा, उसकी बात करते हैं. ओके, जो गायकवाड़ सर सेड प्लीज जूम योर स्क्रीन. ओके सर, आई विल जूम इट फॉर 30 seconds ऑन योर रिक्वेस्ट. हाँ, थैंक यू ममता पाटिल मैडम, वेल एक्सप्लेन. किसके लिए बोला मैडम? लिकर के लिए बोला क्या? ओके, सबके लिए, क्या बात है, चलो ठीक है. लिकर भी आप मानते हो अच्छा इन्वेस्टमेंट है, कोई बात नहीं, चलो. ओके, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, फाइन. अच्छा, so I hope the session is effective and communication is done, right? Okay, कुछ queries है, कुछ problems है, please feel free to ask. So fixed deposits as an asset class. अच्छा, next, government bonds is one asset class. Government bonds are safe. कम से कम उसमें आलिया मालिया धमालिया आपको तकलीफ नहीं देगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में. फिक्स डिपॉजिट्स में क्या होता है, आलिया मालिया धमालिया जो है ना, मोदी चौकसी आपको तकलीफ दे सकता है. बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक ही रिस्क होता है कि गवर्नमेंट अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, पैसा नहीं है तो दे कैन रोल ओवर. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मैंने लिखा है, बट हाल के सिचुएशन में ओके नहीं है. DHFL का हमने डिफॉल्ट देखा है, एक कंपनी है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वो लोग ने पैसा अक्टूबर में डुबा दिया लोगों का, और बदतमीजी की हद थी कि वो फैमिली लॉकडाउन में महाबलेश्वर में पार्टी कर रहा था. It was really, I felt like if I would have got a permission to kill one person for whom I will not be hanged till death, I would have gone there and killed. तो अब जो खा गए और महाबलेश्वर में जाके पार्टी कर रहे हैं, very bad. So corporate bonds as of now, caution, please. सब bonds खराब नहीं है, but caution follow करना है. Post office saving schemes is a good option, tax exemption वगैरह है. Stock market थोड़ी टेढ़ी खीर है, but science है. इस पे भी हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का 6 आवर्स का मॉड्यूल करते हैं, और आपके कॉलेज में भी लाइव मार्केट चालू करके बता सकते हैं. योर कॉलेज आल्सो, इन योर कंप्यूटर रूम वी कैन कंडक्ट अ लाइव मार्केट सेशन. सो 3 आवर्स थियरी, 3 आवर्स प्रैक्टिकल. आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई डू. सो इफ यू वांट टू यूज माय गुड ऑफिसेस यू कैन डू दैट. और recently with everyone's blessing I am been appointed as a academic expert with NSC, so they will also be giving us some offers. I will share that with you through Padma madam's medium. Okay, so ये real estate is also one option. अब रियल एस्टेट में क्या है कि इंडिया में 50,000 रुपए से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है. आई होप यू नो दैट. 50,000 रुपए से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है. आप बोलोगे सर क्या बनाऊं, झोपड़ा बनाऊं ओपन लैंड पे? Yes, Pooja Patil madam, I will share my models. Okay. There is something called as real estate investment fund, REITs करके एक है, कि आज हम लोग 100 लोग हैं,
मान लीजिए सबने सोच लिया कि हम लोग 50-50 हजार रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 50 लाख रुपए तैयार हो गया और पन्ना मैडम के टेबल पे जाके सबने 50-50 हजार की गड्डी रख दी। मैडम 50 लाख रुपया जमा हो गया, हम लोग ने जाके बैंक में जमा कर दिया और उससे फ्लैट खरीद लिया, वो फ्लैट को किराए पर दिया, जो रिटर्न आया उसके 100 हिस्से करके सबको बांट दिया डिविडेंड। फास्ट तो नहीं लगा ये? दैट इज वन ऑप्शन। सो दैट इज हाउ रिट्स वर्क्स एक्चुअली। और 5 साल के बाद जब वो 50 लाख का फ्लैट तकरीबन 1 करोड़ का हो जाएगा, तब आप बेच दो, तो तब तक आपको रेंट इनकम मिलता रहा, और 1 लाख 1 करोड़ में बेचा तो आपका 50,000 का आपको 1 लाख वापस मिल गया। आई होप एवरीवन गॉट द मैथ, बराबर? इट्स क्लियर। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कलेक्टिवली हम कर सकते हैं। देन बुलियंस, इस पे तो मैंने पूरा स्टोरी बोल दिया आपको कि इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो ज्वेलरी नहीं, आप क्या लोगे? बुलियन लोगे, कॉइन्स, बार्स वगैरह। और फिजिकल में भी आप गिफ्ट करना चाहो ना तो 400-450 रुपए का 100 मिलीग्राम का कॉइन आता है। किसी की शादी में आप जाते हो, आप 200, 300, 400 रुपए का बुके लेके जाते हो, वो बुके कहाँ पड़ा रहता है? उसके बैंक्वेट सेंटर के डस्टबिन में। ऐसा मत कीजिए। अगर आपका मन माने तो उसको 100 मिलीग्राम का कॉइन लेके दे दीजिए, लेमिनेटेड क्यूट ऐसा विजिटिंग कार्ड जैसा आता है, वो दे दीजिए। बंदा कम से कम संभाल के तो रखेगा। अगर कचरे के डब्बे में फेंकने वाला बंदा लगे ना आपको, मेरे को एड्रेस दे देना, मैं उसके यहाँ पे जाके हाउसकीपिंग का क्लीनिंग करके आऊंगा। अपने में कोई शर्म नहीं है, बराबर? सो गोल्ड एंड बुलियन। ओके, नेक्स्ट एंटीक्स, उसमें पेंटिंग्स आ गए, स्कल्पचर्स आ गए, प्रिंट फर्नीचर आ गया, पुराना टीक वुड का लकड़ी वगैरह है आपके पास, अलमारी, अलमीरा बोलते हैं जिसको, इवन दैट इज एंटीक, राइट? बराबर। और वाइन तो मैंने बता दिया, विंटेज वाइन। ओके, और ये सब नहीं करना है तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, माँ के शरण में आ जाओ, म्यूचुअल फंड्स के। म्यूचुअल फंड्स आपको ये हर एसेट क्लास का फ्लेवर दे सकता है, राइट? So I hope this slide is also clear to everyone. We have discussed all this. Okay, now we will proceed further to the next one. अच्छा, ये सबसे important है. I hope everyone is in a fresh mood. Okay, with your permission, can I sip some water? Getting little. Mind you, this is just water, nothing else. Lockdown hai. Okay. So now criteria for, thank you friends. So criteria for selection of good investment, ये आज के दिन का सबसे important gift है, right? उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एसेट क्लास तो मैंने आपको समझा दिए, 5-6 एसेट क्लास। लेकिन जब हम लोग एसेट क्लास में कोई भी क्लास में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो क्या करें? सबसे पहले आप ये पूछिए, कोई भी हो, आप गोल्ड में जा रहे हो, प्रॉपर्टी में जा रहे हो, एफडीआरडी में जा रहे हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, कोई भी, साहब पृथ्वीराज देसाई आपको आके बोले साहब मेरे प्रोजेक्ट में 100 रुपया लगाओ, तो पृथ्वीराज देसाई से भी ये सवाल पूछने का। वो बिरादरी वाला टीचर भाई अपना वो सब गया घर पे। व्यापार में प्यार नहीं होता। अगर आप व्यापार शब्द को हिंदी में लिखेंगे ना तो आधा वो या और पार, उसमें प्यार नहीं होता, राइट? व्यापार में प्यार नहीं साहब, धंधा धंधा होता है, दोस्ती दोस्ती होती है, दोनों को मिक्स किया ना प्रॉब्लम, राइट? ओके, ये अगर आपको देखना हो तो मूवी देख लेना, बैंड बाजा बारात। बिट्टू शर्मा और श्रुति कक्कड़ जब तक अपना बिजनेसमैन थे तब तक प्रॉफिट था, जिस दिन उनका दोस्ती हो गया उस दिन लफड़ा शुरू हो गया। तो प्यार में दोस्ती नहीं, दोस्ती में प्यार नहीं, सिंपल, राइट? योर गर्लफ्रेंड एंड योर बिजनेस पार्टनर कैन नॉट बी द सेम। ओके, सो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या है? ये क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, एक ऑप्शन सबसे पहले आपको पूछना चाहिए कि रेगुलेटर है कि नहीं, यानी जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं किसी के भी थ्रू, तो फिर वो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर हो, मेरा बैंकर हो, मेरा फ्रेंड हो, फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू आस्क, डू यू हैव अ रेगुलेटर? अगर शेयर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक संस्था है सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Parliament of India passed an act in 1992 and through this autonomous organization SEBI came into existence. थियरी में हम लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, I will not touch point much on that. तो अगर आपको कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड की स्कीम बोलता है ना, तो उससे आप पूछिए कि भैया ये आपका शेयर्स या म्यूचुअल फंड का स्कीम है तो क्या ये सेबी अप्रूव्ड है? बस उतने में सब कुछ आ गया, उतने में सब कुछ आ गया। उसका पूरा
उसका खानदान अगला पिछला सब आपने देख लिया। क्लियर? अच्छा, सेकंड, कोई अगर आपको इंश्योरेंस, थैंक यू ग्रह सर, तो कोई आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहा है, या मेरी भाषा में बोलूं तो कोई इंश्योरेंस चिटका रहा है, तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको आप पूछिए कि ये है कि नहीं। और ये सबकी वेबसाइट्स हैं, हर एक के वेबसाइट पे बहुत कुछ डेटा अवेलेबल है, राइट? सो इफ इट इज अ म्यूचुअल फंड और शेयर्स प्रोडक्ट, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय सेबी। इफ इट इज अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इट हैज टू बी गवर्न्ड बाय IRDA। लोग कहते हैं कि SIP शुरू करना है, उसमें आपको बेनिफिट है, तो मैंने पूछा भाई कौन सा SIP है, तो सो एंड सो नाम दे दिया। ULIP एक बहुत पेन पॉइंट है लोगों का, किसी के पोर्टफोलियो में होगा तो मुझसे मिलना, बात करना, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। साहब, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को SIP समझ के चिटका दिया लोगों ने। आई गेट कॉल्स फ्रॉम ऑल इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो बाय इंडियंस फॉर दिस प्रॉब्लम। तो IRDA वाला है तो वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, समझो आप। और अगर सेबी अप्रूव्ड है तो वो शेयर्स या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है। तो उसको पूछो भैया तेरा कोई माई बाप है, तो खानदानी इंसान है ना, तेरा माँ बाप कौन है, तेरा वंश क्या है, तेरा तुमचा आडनाव काय है, तुमचं कोणतं कुळ, 92 कुडी मराठा, 96 कुडी मराठा, राइट? पटेल हो या पाटिल हो, लेवे पाटिल हो, कड़वे पाटिल हो, बताओ। सो वेरी क्लियर विद द फर्स्ट थिंग, रेगुलेटर होना चाहिए। क्लियर? ओके, एनी डाउट्स ऑन द रेगुलेटर पार्ट? नो। जैसे मैंने बिटकॉइन का मैडम प्रेजेंटेशन सुना था 2 साल पहले, बहुत फैसिनेटिंग लगा। लास्ट सवाल पूछा, बोला साहब इस पे रेगुलेटर कौन है? बोले वो रेगुलेटर नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आज सेफ हूं उसी वजह से, राइट? सो रेगुलेटर पूछो आप। सेकंड, उसमें आप ये देखो कि लिक्विडिटी हो सकता है कि नहीं। व्हाट इज लिक्विडिटी? द क्वालिटी ऑफ अ एसेट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। द क्वालिटी ऑफ अ एसेट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कैश मतलब मैं 2 नंबर के पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिकल लेजिटिमेट मनी, लीगल मनी, राइट? तो जैसे आपका FD है, बैंक में जाके बोलोगे मेरे को पैसे की जरूरत है, वो बोलेगा बाहर जाओ, पान वाले की दुकान है, 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैंप लो, चिटकाओ, साइन करो, अक्रॉस सबमिट करो, लिक्विडेट करेंगे, राइट? लिक्विडिटी है। रिकरिंग डिपॉजिट, लिक्विडिटी है, राइट? शेयर्स में 5 दिन का वक्त लगता है, लिक्विडिटी है। म्यूचुअल फंड में 5 दिन का वक्त लगता है, लिक्विडिटी है। गोल्ड, आधी रात को भी सोनार का दरवाजा खटखटाओगे आप और उसको बोलोगे मला हे अपना गहाण ठेवायचं आहे, मला यावर उष्णीचे पैसे पाहिजे, आई वांट टू मॉर्गेज दिस और आई वांट टू सेल दिस, पक्का व्यापारी होगा, रात को भी व्यापार कर लेगा आपके साथ, राइट? किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़े गोल्ड बेचने की, फोन करना, वो भी आपका सेटिंग करा देंगे, बट लॉफुली, लीगली, ठीक है? ओके, तो लिक्विडिटी होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी में दिक्कत क्या आती है कि प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी फैक्टर इज लैकिंग। प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है मतलब क्या? वो कोई ऐसा नहीं कि सुबह मैंने बेचने रखा और शाम को बिक गया। कभी 1 दिन में भी बिक सकता है और कभी 1 साल तक भी नहीं बिक सकता है। और फिर उसमें आपकी प्रॉपर्टी देखने लोग आए तो उसमें 10 तरह के प्रॉब्लम। आपके प्रॉपर्टी में वास्तु दोष है, दक्षिण मुखी दरवाजा है, अपना बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है, किचन अपना ये दिशा में है। साहब, ये दशा और दिशा जो है ना, अपनी दशा का बिगाड़ देती है। और अगर आप मानते हो थोड़ा सा अध्यात्म को, तो घर खरीदते वक्त एक अच्छा वास्तु वाला घर खरीदना बहुत फायदे कारक होता है। बाकी आप अगर इसको ऑर्थोडॉक्सी समझो तो आई डोंट माइंड, यू मे हैव योर ओन व्यूज, राइट? तो लिक्विडिटी फैक्टर शुड बी देयर। उसके बाद टैक्स कितना लागू पड़ता है। जैसे बहुत बार आपको मैसेज आते होंगे, मध्य प्रदेश इंदौर से फोन भी आते होंगे, साहब हमारे पास बहुत फैंटास्टिक कॉल है, 1 दिन में पैसा डबल, 2 दिन में पैसा डबल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर हुआ 1 दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा डबल, मतलब सुबह खरीदा शाम को बेचा, सुबह बेचा शाम को खरीदा, या सुबह खरीदा शाम को बेचा शेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज इंट्राडे ट्रेडिंग। दैट इज ट्रेडिंग एंड नॉट इन्वेस्टमेंट। तो आधे लोगों को तो हिंदुस्तान में ये नहीं पता कि वो शेयर ट्रेडर हैं कि शेयर इन्वेस्टर हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो यू आर अ शेयर इन्वेस्टर, आप उसको जुआ समझ के खेलते हो तो यू आर अ शेयर ट्रेडर, ओके? तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन इंट्राडे में साहब 33% टैक्स है। मतलब कोई इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरे को कॉल देता है, 100 रुपए में मैंने शेयर खरीदा, कल 200 रुपए का हो गया। पॉसिबल है साहब। 2 महीने अपना जनवरी के महीने में मैं सोमैया कॉलेज गया था शेयर मार्केट का लेक्चर लेने के लिए। तो शुक्रवार को एक कंपनी थी रुचि सोयाबीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 4 रुपए का कंपनी का उसका मार्केट प्राइस था। और अचानक से शनिवार को बाबा रामदेव ने उसमें हिस्सेदारी खरीदी,
सोमवार को बाजार खुला, वो 4 रुपए का शेयर 16 रुपए का हो गया। यानी उस दिन में अगर 1000 रुपया खर्च करके वाइफ के साथ लोकल होटल में नहीं गया होता और रुचि सोया के शेयर खरीदे होते ना, तो मंडे को मैं ताजमहल के चक्कर अपना लेवल के होटल में जाता और वहां पे लेविश डिनर करता, थैंक्स टू रुचि सोया। बट अगर वो फ्लॉप हो जाता ना, तो वड़ा पाव की भी कैपेसिटी नहीं बचती। तो इंट्राडे इज अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉल गेम, प्लीज डोंट बर्न योर फिंगर्स विद दैट। और साहब लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते हम लोग का दिमाग में वो प्राइस चलता रहेगा कि भाई भाव पढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, एंड दैट विल अफेक्ट अवर टीचिंग। सो दैट इज अ प्रॉब्लम सर, डोंट डू दैट। और वो जो उसमें हार्ट पेन होता है ना बॉस, उससे हार्ट अटैक आते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आता है। सो प्लीज डोंट बर्न योर फिंगर्स। सो टैक्स इम्प्लीकेशन इंट्राडे में 33% इज द टैक्स इम्प्लीकेशन, राइट? सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट कि टैक्स कितना लागू पड़ेगा। क्लियर है टैक्स पार्ट? और टैक्स समझाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ बेटर पर्सन देन मी, सो आई विल नॉट टॉक मच अपॉन दैट, बट खाली इतना पूछ लो भाई टैक्स क्या बनेगा इस पे। उस पे नाम अलग नाम से इन्वेस्ट करो तो टैक्स बच सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो तो टैक्स बच सकता है। देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन। सी टैक्स इवेजन इज डिफरेंट एंड टैक्स प्लानिंग इज डिफरेंट। इफ आई प्लान इट इज टैक्स प्लानिंग, और मैं चोरी करता हूं दैट इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन नहीं करना है हमको, टैक्स प्लानिंग करना है। अच्छा, देन सबसे इंपॉर्टेंट रैशनल या लॉजिक। जैसे सेशन खत्म हुआ, मैंने पद्मा मॅडम को फोन किया, बोला मॅडम सगळं व्यवस्थित झालं? बोला हां, उद्या आपण असंच करूया. हो. बोला मॅडम आजच्या दिवसासाठी स्पेशल ऑफर आहे तुमच्यासाठी. बोला काय? बोला मॅडम ऑनलाईन थोडेसे पैसे ट्रान्सफर करता का? बोले कशाला? बोला मॅडम इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी आहे. बोला काय? बोला 10,000 रुपये द्या मला आणि उद्या सकाळपर्यंत डबल करून देतो. मैडम बोले अच्छा, लॉकडाउन में डबल करके देगा? बता कैसे? बोला मैडम देखो आपसे छुपाएगा नहीं, आज शाम को है ना हम लोग है ना ऑनलाइन 3 पत्ती खेलने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड 3 पत्ती, राइट? तो 3 पत्ती खेलने वाले हैं और मैडम 3 पत्ती में अपना इतना लक है ना, मैं पीसता हूँ ना तो 3 एक का ही आता है हमेशा। तो मैडम बोले मैं पृथ्वी मैथ सिखाती हूँ, प्रोबेबिलिटी सिखाती हूँ, 52 होते हैं पत्ते, तेरे को हमेशा 3 आएगा ऐसा कौन सा प्रोबेबिलिटी लॉ है? मेरे को समझा। Returns were fascinating, but what was the problem? The rationale or logic was not materialistic. बराबर है ना? I hope you are clear with this. कि उसको पूछो, जो आपको समझा रहा है ना बंदा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, उसको पूछो भाई तू मेरा पैसा डबल कैसे करेगा? तू बोल रहा है डबल देगा, ट्रिपल देगा, तो कैसे देगा? What is the logic? साहब आप सर्च मार के देख लेना, हिंदुस्तान के इतिहास में पर्ल एग्रो कमर्शियल लिमिटेड या पीएसीएल शॉर्ट फॉर्म है, पर्ल एग्रो कमर्शियल में पीएसीएल में लोगों ने पैसा डुबाया है। वो लोग ने बोला जमीन हमारी, आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट करो, हम उस पे पेड़ उगाएंगे, उस जमीन पे आपके नाम से वो पेड़ उगेगा, उस पे फल लगेंगे, वो फल बेचेंगे, आपको पैसा मिलेगा। साहब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर पास किया, 49,000 करोड़ 49,000 करोड़ का जो लोचा किया ना, वो पैसा 1-1 रुपया वापस दो इन्वेस्टर का। तो ऐसा पेड़ और ये और वो सब उसके चक्कर में जरा सोच समझ के प्लीज, अपना हार्ड अर्न मनी है, गला फाड़ के पैर तोड़ के मिलता है 8 घंटे मेहनत करके, वो जाया नहीं जाना चाहिए। रैशनल लॉजिक वेरी क्लियर। उसको पूछो मेरा पैसा कैसे ग्रो होगा, खाली मेरे को ये समझा, प्यार से पूछो। अरे मैं अनाड़ी आदमी हूँ, ये तुम किधर लगाते हो पैसा? येड़ा बन के पेड़ा खाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रैशनल लॉजिक इज वेरी क्लियर। एनी डाउट्स ऑन दिस? नो? ओके, देन इट इज टाइटल और ओनरशिप। कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होगी? विल यू गिव मी समथिंग इन राइटिंग? जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है, क्लास में बच्चा शरारत करता है तो हम उससे ये लिखवाते हैं ना, बराबर? थैंक यू अतुल राउत सर फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हम बच्चे को क्या बोलते हैं? लिख के दे, कन्फेशन कर, मैं ये किया, अभी अगर ऐसा नहीं करूंगा, राइट? तो लिखित में देना पड़ता है ना उसको, राइट? पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स से लिखवाते हैं कि भाई आप लिख के दो कि आपका बच्चा परेशान नहीं करेगा, डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, डिसिप्लिन रखेगा, तो उसको बैठने देंगे। तो जब आप कोई चीज राइटिंग में मांगते हो ना, सामने वाले का जेन्युइननेस आ जाता है। बेटा डिस्टर्ब है, आपका ये आ जाता है, जेन्युइननेस आ जाता है, बराबर है? तो ये पूछो कि मेरे नाम से कुछ सर्टिफिकेट, कुछ पेपर, कुछ मिलेगा क्या? ओके, तो टाइटल ओनरशिप शुड बी क्लियर। और खास करके जो मेरे टीचर मित्र
घर खरीद रहे हैं ना, उनसे हाथ जोड़ के विनंती है साहब कि उसका प्रॉपर्टी पेपर्स चेक करो, टाइटल ओनरशिप बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका खुद का जेब का पैसा होना तो भी उसके लिए लोन एप्लीकेशन के लिए डाल दो एक बार। बैंक वाला पूरा लीगल फ्रेमवर्क देखेगा, पूरा उसका सीरीज एग्रीमेंट सब चेक करेगा और आपको बोलेगा कि इस पे लोन मिल सकता है, तो 99% ऑफ प्रॉपर्टी सेफ है। अगर बैंक वाले ने बोला नहीं डॉक्यूमेंटेशन में लफड़ा है, लोन नहीं मिलेगा, तो आप उससे सचेत हो जाना। बाकी मुंबई में बहुत सारे कैंपा कोला कंपाउंड्स आज भी हैं, जिंदगी भर की मेहनत का पैसा आप लगा दोगे, मालूम पड़ा टॉप फ्लोर वरती मी घर घेतलं, टेरेस सांगती आणि माहित पडलं टॉप फ्लोर आणि टेरेसच इलिगल होते, एंड आई हैव टू स्पेंड अननेसेसरली फॉर दैट। बराबर, तो टाइटल ओनरशिप क्लियर होना चाहिए। मेरे को पैसा दिया, मेरे को लिखित में चाहिए भाई। मैं अपने बाप को पैसा दूं तो भी मैं राइटिंग में लूंगा, मैं तो इतना पक्का बनिया हूं, बात खत्म। भले सामने वाले को बुरा लगे, नहीं करे धंधा मेरे से भाई। फाइनेंस में नो मस्ती बॉस, नो दुनियादारी। ओके, दोस्त को भी उधार देते हो ना 25-30 हजार रुपया, लाख रुपया, और वो बोलता ना अगर सामने से कि तेरे को एक चेक देके रखूंगा सेफ्टी में, बोला हाँ देके रख, कभी तूने कुछ गड़बड़ किया मैं तेरे पे केस तो कर सकता हूँ, करूंगा नहीं दोस्ती में, बात अलग है, राइट। अच्छा, तो टाइटल ओनरशिप इज वेरी क्लियर, अपना नाम होना चाहिए, बराबर। ओके, थैंक यू गणेश देशमुख सर। ओके, तो लॉक इन पीरियड, नेक्स्ट पे जाते हैं। लॉक इन पीरियड होना चाहिए। अभी लॉकडाउन पढ़ा होगा ना कोई को लोगों ने गलती से, लॉक के आगे हम लोग डाउन ही सोच लेते हैं। लॉक इन पीरियड मतलब क्या होता है कि लॉक इन पीरियड में आपको ये ध्यान रखना है कि उसको पूछो ये पैसा कभी वापस मिलेगा। जैसे अभी हमारे डेढ़िया सर ने, शायद फिनिल डेढ़िया सर नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि सर ELSS में 3 साल का लॉक इन है, राइट। तो ये होता है कि सम इन्वेस्टमेंट्स you get your money back only after a certain period of time, so that is called as lock in. म्हणजे त्याच्या अगोदर तुम्हाला पैसे परत भेटणार नाही, that is called as lock in. जैसे हमारे एक शिक्षक मित्र ने PPF की बात की थी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो PPF में ये होता है कि there is a lock in period of 15 years. जिस दिन से मैंने अकाउंट खोला 15 साल के बाद मेरे को वो पैसा मिलेगा, उसके पहले लोन मिलेगा सिर्फ। ELSS is a better option. थैंक यू मोहित्रा मैडम, कि भाई लॉक इन पीरियड है, कितने साल का है, 1 दिन का, 1 साल का, 3 साल का, 15 साल का। लॉक इन पीरियड पूछे बिना काम करने का नहीं, राइट, सिंपल। सो लॉक इन पीरियड वेरी क्लियर कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स डोंट हैव अ लॉक इन पीरियड, बट ELSS है, PPF है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, दे डू हैव अ लॉक इन पीरियड, राइट। सो एनी डाउट्स ऑन लॉक इन पीरियड? नो। ओके, last in this slide, and then we will continue for some time if madam permits. There is something called as nomination. आज के पूरे 1.25 घंटे में अगर कहीं मेरी बात आपके दिल को, दिमाग को कहीं छू गई हो ना, तो मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांगूंगा, मालिक का दिया और आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ है। बट एक बात ध्यान रखना कि आज का होमवर्क है आपके लिए, मेरे अंदर का टीचर जाग उठा, स्टेटमेंट या पेपर कॉपी स्टेटमेंट्स हैं, आज के आज विद इन 48 आवर्स, देखो बाद में नहीं होता साहब, सैटरडे संडे मूड में वो सब डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए और देखिए कि उसमें नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है कि नहीं, आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है कि नहीं, आपके LIC इंश्योरेंस पॉलिसीज में नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है कि नहीं, आपके सोसाइटी में आपका, यस पार्थ जोशी सर सेड मैनी इग्नोर दैट, और आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में साहब मैं 25 साल का था, मैंने LIC निकलवाई, शादी नहीं हुई थी, मेरे मम्मी को मैंने नॉमिनी बनाया, वाइफ आई, मैंने नॉमिनेशन चेंज नहीं किया, बट 2 साल पहले मम्मी गुजर गई और मेरे को याद नहीं कि मैंने नॉमिनेशन चेंज नहीं किया है, प्रॉब्लम आएगा ना। उसके गम में अगर मैं गुजर गया इरफान खान के जैसा, तो मेरे वाइफ को पैसा लेने के लिए दुनिया भर की खाक छाननी पड़ेगी। पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट में जाएगी, वो पूरा 25,000 रुपया खर्चा कर देगी, ऑर्डर मिलेगा, जाने के बाद बंदा ये नहीं बोले कि यार मरा तो मरा लेकिन हमको दुखी करके गया, और मेरी तो मरने की नहीं। और कभी भी मेरे घर में एक कबाट हो, उस कबाट में लिफाफे हो, हर लिफाफे में कैश हो, मैयत का खर्चा, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, 10वें 12वें का खर्चा, राइट, मेरा वार्षिक श्राद्ध का खर्चा, राइट, सब कुछ। मतलब बंदा मेरा कबाट खोले ना, यस, सोसाइटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नॉमिनी, यू हैव टू रजिस्टर विद द सोसाइटी, क्षितिजा मैडम। तो समझ में आया कि नॉमिनेशन, प्लीज, आप रिक्वेस्ट है आपसे सबसे, ये होमवर्क आप लोग आज कीजिए प्लीज, सब इन्वेस्टमेंट्स में चेक कर लीजिए, लॉकडाउन ने मौका दिया है, राइट। नहीं मैडम, मरूंगा नहीं पदमा मैडम, वो एग्जांपल दिया खाली,
right? So nomination, very important, right? Okay, so this slide is the most important thing. Please follow this criteria. अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा कि उधर वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है ऊपर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन के बाजू में? मैं बोला कोई तो टीचर मेरा एकदम ऑब्जर्व करके पूछेगा, बोले सर वो बाकी सब लॉजिक समझ में आया, क्राइटेरिया वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है? तो दिस इज अ tribute to all mathematicians, and today's main coordinator is also a mathematician. So Padma madam, this is for you. Life जो है ना वो ये बोर्ड मास जैसी है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मेरे को नौकरी मिली, तनख्वाह आने लगी, क्या होने लगा? पैसे का एडिशन. पैसे आए, नौकरी के बाद छोकरी मिली, क्या होने लगा? सब्ट्रैक्शन. घर का रिपेयरिंग कराया, माँ बाप की तीर्थ यात्रा करवाई, बहन की शादी करवाई, राइट, सब कुछ करवाया, सब्ट्रैक्शन होने लगा. 5-10 साल मैंने नौकरी की, प्रमोशन हुआ, क्या होने लगा? मल्टीप्लिकेशन. मेरे को इंसेंटिव मिला, बोनस मिला, 12 साल खत्म हुए, हायर ग्रेड ट्रेनिंग हुई मेरी, सीनियरिटी स्केल मिलने लगा, 24 साल हुए और सीनियरिटी स्केल मिला. और करते करते वक्त कब गुजर गया मालूम नहीं पड़ा, और मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ गया. तो क्या हो गया? डिवीजन. अब मेरे 2 बच्चे थे, दोनों बोले पापा ये घर बेचो, 3 घर खरीदते हैं, एक में तुम रहो, एक में मैं रहता हूँ, एक में भाई रहेगा. तो साहब ये जीवन का गणित जो है ना, ये पूरे बोर्ड मास में ही चलता है. शुरुआत में एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में मरते मरते क्या हो जाएगा? डिवीजन. लेकिन डिवीजन आपके पास इतना बचे ना कि आप अपने दम पे मरो. जैसे एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जीना है तो खुद के दम पे जियो, जीना है तो खुद के दम पे जियो, दूसरों के कांधों पे तो जनाजे निकला करते हैं. साहब मर गया तो जनाजा तो उठाएगा कोई ना कोई मेरा, बट जीते जी मेरे को लाश समझ के क्यों कोई उठाए? जीना है तो खुद के दम पे जियो, दूसरों के कांधों पे तो जनाजे निकला करते हैं, राइट? हाँ, लेकिन जब मेरी आंख बंद हो, मैं इस दुनिया से जाऊं, तब तो कोई मेरा जनाजा उठाएगा ना. तो उसके लिए भी कह दूं, जहां मैं किसी का एहसान न मानता, अगर मेरे कांधों ने मेरी लाश उठाई होती. So be thankful to people in life who have helped you directly, indirectly, in any good or bad way. Like I think एक साइंटिस्ट ने कहा था, I am thankful to those who said no. It is because of them that I could do it on my own. I am thankful to them who said no. It is because of them that I could do it on my own. तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बस जीवन ये 4 सिंबल्स के बीच में ही चलती रहती है, राइट? कौन से स्टेज में आप हो, उस पे से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल वेलनेस डिसाइड होता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड मैडम. थैंक यू तेजल शाह मैडम. थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स फॉर योर लवली कमेंट्स. बस एक छोटी सी कोशिश थी, ये मैथ्स ऑफ लाइफ वेरी गुड. थैंक यू रमेश तड़वी सर. बस ये प्लस माइनस ही है. देखिए प्लस होता है, अकेला खड़ा हूं मैं, पगार कमा रहा हूँ. फिर क्या हुआ? पैसे बढ़ने लगे तो माइनस हो गया. फिर जब बढ़ने लगा तो मैं स्टेबल हुआ तो मल्टीप्लिकेशन हो गया. और फिर फाइनली क्या हुआ? वो हाथ से बना नहीं सकता, डिवीजन हो गया, खत्म. प्लस माइनस, लाइफ एंड, ब्रैकेट ओवर, राइट? थैंक यू पंकज जैन सर. ओके, देन आस्क दिस क्वेश्चंस बिफोर investing in the product. So I think it's almost 12:36. So Padma madam, Eknath sir, what should we do? Shall we complete this slide for the day and then we can hand up, or you want you can permit me to continue for 5-10 minutes more? Yeah, with everyone's permission. Yes sir, continue sir. Continue ना सर? Yes sir. चालेल सर. मग तुम्ही मला सिग्नल द्या तेव्हा आम्ही आपण हे करूया, वाइंड अप तुमचे करूया. I hope everyone is enjoying. Continue sir. Okay, Yes sir. sir. All are Okay, saying continue. Yes. थोड़ा खाना है, सब लोग लेट खा लेना. और मेरे जो Everybody is enjoying पुरुष this मित्र session. आज खाना बनाने वाले थे, उनको बोलना मैं लाइफ की खिचड़ी पका रहा हूँ, बाद में खाना खिला दूंगा देखो बना के. Okay, thank you for your love and affection. I am really feeling very happy. Thank you. तो ये एक स्लाइड कवर करते हैं जो हम लोग बना लिया था. तो उसमें ask these questions before investing in a product, right? Okay, thank you for your good positive feedback. तो ask these questions before investing in a product. मैंने ये जो बोला था ना, वही ये स्लाइड शो है और कुछ नहीं है. Is it registered with any regulator?
right? Thank you आशीष sir. Matches with your investment goal. देखो पहले तो मैंने आपको सब बता दिया कि रेगुलेटर है कि नहीं वो देखना है. तीसरा वाला जो है वो भी शायद क्लियर है कि how will investments made make money and give me assured return. जैसे पन्ना मैडम ने बोला देख पृथ्वी जैसे अच्छी दोस्ती है तू मेरा बेटा है बट सॉरी मैं देखो 3 पत्ती के लिए पैसा नहीं दूंगी. थैंक यू भरत सर. ओके. और दूसरा बीच वाला है मैचेस विथ माय इन्वेस्टमेंट गोल. मतलब क्या कि साहब यहां से मैंने कहा हरिद्वार जाना है तो साइकिल पे जाऊं, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा उसकी गारंटी नहीं है. बेस्ट एंड सेफेस्ट ऑप्शन इज फ्लाइट. बराबर, बेस्ट एंड सेफेस्ट ऑप्शन इज फ्लाइट. ठीक है. अब आप बोलोगे सर फ्लाइट में भी तो रिस्क है, इसीलिए टीचर ने मेरे रिस्क की बात की थी. अब देखो फ्लाइट में जो लोग ट्रैवल कर चुके हैं, नहीं तो टीवी में भी देखा होगा आपने, वो हवाई सुंदरी एयर होस्टेस अनाउंस करती है, कितना प्यार से रिस्क समझाती है. अगर आपातकालीन, मेरी आवाज उतनी मीठी नहीं है और ना मेरा चेहरा उतना ब्यूटीफुल है, नो आई हैव दैट पर्सनालिटी. अगर आपातकालीन स्थिति हवाई जहाज का आकार कुछ ऐसा है कि ये पानी पे तैरने लगेगा. अब ईमानदारी से बोलिए खुशी की बात है कि दुख की बात है, हैप्पी और सैड, which type of news is this? Actually it is a sad news but informed in a very happy way. मतलब वो ये रास्ता बता रही है, राइट? वो रास्ता बता रही है कि भाई तैरने लगेगा आपका हवाई जहाज, बट ये भी समझा रही है कि भैया ये जहाज प्रॉब्लेम आएगा तो पानी पे उतरना भी पड़ सकता है, राइट? आता परदेश नको सर कोरोना, नाही परदेश जायचं पण नाही सर, फक्त विचार करायचा. व्हर्च्युअल. ओके, थँक यू. फर्स्ट महाराष्ट्र मराठी स्टेटमेंट. ओके, सिंपल. नाउ दूसरा अनाउंसमेंट क्या होता है, किसी कारण से अगर केबिन में हवा का प्रेशर कम हो जाए तो ऊपर रखे हुए बॉक्स में से ऑक्सीजन मास्क आ जाएगा और मुंह पे रखे बच्चों को पहले देने से पहले खुद सांस लें, ऑल दैट, राइट? आप खुश हो, वाह ऑक्सीजन मास्क है. अरे साहब ऑक्सीजन मास्क है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको ये भी रिस्क समझा दिया कि हवा का प्रेशर केबिन में कम भी हो सकता है. अभी 4-6 महीने पहले की बात है, मुंबई जयपुर फ्लाइट में हवा का केबिन प्रेशर लोग एडजस्ट करना भूल गए थे पायलट, तो लोगों के नाक से खून आना चालू हो गया था. डोमेस्टिक फ्लाइट थी मुंबई जयपुर एंड द पायलट कुड नॉट एडजस्ट द एयर प्रेशर, वो ही फॉरगॉट, बीवी से झगड़ा करके आया होगा, तो वो रिस्क है ना. ओके, पन्ना मैडम विल एडजस्ट विद दैट. ओके, सिंपल. सो मैचेस विथ माय इन्वेस्टमेंट गोल, राइट? तो ये थोड़ा सा कल हम लोग एक एक्टिविटी भी आपके साथ करेंगे वक्त मिला तो, राइट? ये मैचेस विद इन्वेस्टमेंट गोल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. बट इतना समझ लीजिए साहब कि लकड़ी की तलवार लेकर मैं हर हर महादेव नहीं कर सकता, वो तलवार फिर अच्छे फौलाद की होनी चाहिए. सो माय वेपन दैट इज माय इन्वेस्टमेंट शुड मैच विथ माय गोल. अभी जैसे मेरे को एक जन ने अपना खाने में बुलाया और वो बंदा गंजा था, मैं उसके लिए कंगी लेके चला गया. सेंसलेस है ना. मैंने बोला ये ले तेरे लिए गिफ्ट. जैसे पहली बार अपने वुड बी वाइफ से डेट पे गया था तो उसने बोला हैव यू ब्रॉट एनीथिंग फॉर मी, तो मैंने उसको सर्कस के 2 टिकट गिफ्ट किए. बोला चल आपण जाऊया. मला बोलते काय माझं नशीब, सर्कस का टिकट. बोला हाँ, उसमें फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है ना. बोला क्या फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है? जैसे राज कपूर इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, तो बोला वो गाना नहीं सुना तूने, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी. ये इन्वेस्टमेंट का वर्ल्ड भी ऐसा ही है, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी. और उसका एक खास लाइन मुझे बहुत दिल को करीब है कि कैसा ये करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है. एक एक स्टैंजा उस गाने का मुझे पसंद है. और नसीब ऐसा घुमाता है ना कि हीरो से जोकर बना देता है. हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है, राइट? जो फेमस आर्टिस्ट था वो उसको जोकर बन जाना पड़ा साहब मूवी सक्सेसफुल करने के लिए. तो लाइफ कभी आपको जोकर भी बना रही है. अभी देखो जोकर ही बना के रखा ना हमको भी. अपना इन्वेस्टमेंट 1 महीने में 30% डाउन हो गया, अपने को समझ में नहीं आया क्यों डाउन हुआ. हीरो थे हम लोग, जोकर बन गए कि नहीं? मजा आ गया, एंजॉय, राइट? हाँ जी, किसी ने मुझसे पूछा ऐसा क्यों. ओके, if any queries you can type also, friends. So how long has the company been in the business and people behind it? I think when Padma madam introduced the institution, of course it's not a business,
but she said for how long Mahatma Education Society is there in the education field, right? More than 50 years, I guess, madam, right? So that proves the background कि for how long the company has been in the business. जैसे टाटा ग्रुप साहब 1907 से है, तो अपने आप में एक विश्वास होता ना. रेमंड, माय फेवरेट ब्रांड, दैट इज सिंस 1927, बराबर. तो ऐसा विश्वास कि आप उसको पूछो कब से है ये आपकी कंपनी, राइट? अच्छा, देन हैव दे एवर रिटर्न द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स? उसको पूछने का तुमने कभी पैसा लौटाया है क्या इन्वेस्टर्स का, तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा, हाँ साहब लौटाया ना, काफी बार लौटाया, हमेशा लौटाया है. बोला ओके. अगर ये सब में से कुछ लफड़ा निकलता है, इफ नो देन बी अवेयर, राइट? So I hope this slide is very clear. If you wish, you can take a screenshot of that also. And those who wish, I will share this presentation also. Right? Welcome, Ane madam. Okay, the next slide. Okay. Have you made up your decision for investment decisions? Next. अच्छा. अब ये high potential return. Okay, click them. Click them. Wait. ये जो लेफ्ट में है ना, these are losing strategies. मतलब जो पैसा तोड़ता है ना इस बाजार में, वो लोग ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं. अरे क्या रिटर्न देता है कंपनी, छप्पर फाड़, 25% ब्याज. साहब मैंने कलम्बोली पुलिस स्टेशन में एक ऐसा ही प्रोग्राम किया था. वो कांस्टेबल्स ने हमको बोला, यस आई विल शेयर दैट. बोला सर आप 6 महीने पहले आए होते ना, एक पुलिस वाले की जान बच जाती. बोला साहब क्यों? बोले साहब हमारा एक पुलिस वाला रिटायर हुआ, 2 बेटियां थी, 12 लाख रुपया उसका प्रोविडेंट फंड उसको मिला. बंदे ने जाके पेड़ कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट कर दिया. 50 साल पुरानी बैंक थी, पेड़ कोऑपरेटिव बैंक. बंदा भी वहां का रहवासी था. और साहब 12 लाख रुपया 12% ब्याज पे डाल दिया. और अचानक से बेटियों की शादी के पहले बैंक डूब गई, पैसा डूब गया, और वो बंदे को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया. राइट? सो हाई रिटर्न पोटेंशियल के चक्कर में जाने से पहले ये सोचना कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स. अति की गति नहीं होती है साहब, बराबर. ओके, सेकंड, लो रिटर्न्स. ओके, योर डैड इज ACP with Khalapur. Fine, very nice. So good, we have relations. I know that the state scam. Okay, आपने सुना है सर इसके बारे में. Then low returns, low but certain returns. साहब FD/RD में कल तक शायद आपकी सोच बदल दूंगा कि उसमें आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं होता है. सो FD/RD लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ परफेक्ट नो, मेरे तरफ से ना है. Prefer specific asset class for investment. It is said don't put all your eggs in one basket. सिर्फ रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करता हूं, सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट करता हूं, सिर्फ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता हूं. नो, हैव अ डाइवर्सिफिकेशन. हैव अ डाइवर्सिफिकेशन, राइट? हम खाने में रोज एक ही चीज खाते हैं क्या? नो, वी डाइवर्सिफाई. हम एक ही फ्रेंड रखते हैं क्या? नो, वी हैव अ कोर ग्रुप. सो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. देन टैक्स सेविंग्स. बहुत लोग तो टैक्स के बारे में इतना सोचते हैं ना जैसे पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके टैक्स से ही चल रहा है. साहब हम सबको योगदान देना पड़ेगा. ये सड़क की सफाई, ये सड़क का लाइट हमारे पैसे से ही चलता है. सो टैक्स सेविंग्स इज इंपॉर्टेंट. देन शॉर्ट रन हाई प्रॉफिट एसेट्स. मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर फटफट पैसा कमाने वाला कुछ है क्या? बोला साहब 3 पत्ती खिलो. तो बोला उसमें तो रिस्क है. तो बोला उसमें तो रिस्क है. तो बोला ठीक है भाई, ओके नहीं करेंगे ऐसा. ओके, देन शॉर्ट रन में प्रॉफिट्स नहीं हो सकता, राइट? Very clear with the losing strategies. ये losing strategies हैं, right? And then we have some winning strategies also that I will discuss with you all. I think we are running short of time, isn't it, Padma madam? So we will wind up in a very short while from now. Sorry for exceeding the time limit. I know it's Saturday morning, but really very sorry. वो एक momentum बनना था तो मला थोड़ा कर लूँ. Winning strategy है investment. Yes, madam. Complete to a logical point, 5 minutes. Okay. Yeah. So winning strategy is invest with an objective. जैसे मेरी मम्मी चावल बनाती थी ना घर में, तो वो मुट्ठी भर चावल मानो डब्बे में से निकालते हैं. मेरे पप्पा का नाम नहीं लेती थी. ह्यांच्यासाठी, मोठ्या मुलासाठी, धाकट्या मुलासाठी, मग माझ्यासाठी. क्या करती थी वो? एक्चुअली ऑब्जेक्टिव सेट करती थी. कितने लोग खाना खाने में हैं, उतना मुट्ठी चावल बनेगा. आई थिंक ये हमारे सबके घर में होता है.
तो जैसे हम लोग चावल पकाते वक्त कितने लोग खाना खाने वाले हैं उसके हिसाब से उतने मुट्ठी चावल बना निकालते हैं डिब्बे में से, या आटा बांधते वक्त उतना ही चम्मच आटा निकालते हैं बर्तन में से, तो वैसे हमको इन्वेस्ट करते वक्त भी ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्ट करना है। ये गोल सेटिंग कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इन्वेस्ट टू डाइवर्सिफाई, ये मैंने समझाया, in which mutual funds can help you, shares can also help you in diversification. Maximize tax savings with the first condition. Okay, we'll discuss that also. Then invest according to risk profile. साहब आप अगर एज आपकी बढ़ रही है ना तो रिस्क कम लेना चाहिए. आपल्या मराठीत म्हणतात ना की मोठ्या वयात जास्त उड्या मारायच्या नाही. वय आहे का तुमचं आता उड्या मारायचं नाही. तो जिसका काम उसको साजे, दूसरा करे तो घोरक बाजे. तो इन्वेस्टमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल. इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि रात को मेरे को नींद आए शांति से, मेरे को स्लीपिंग पिल नहीं लेना पड़े इन्वेस्टमेंट करने के बाद. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट, अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर नो, एसेट प्रेफरेंस. साहब मौका परस्त मत बनो, अपॉर्चुनिस्ट इन्वेस्टर मत बनो, राइट. बट क्या करो, एसेट प्रेफरेंस रखो. ये थोड़ा कल मैं समझाऊंगा डिटेल में आप लोगों को. ओके, फाइन. एंड अवॉइड स्पेकुलेशन. आप जुआ खेल के कोई जीता नहीं. 97% of the people lose money in share market, in futures and options. 95% people lose money in share investments also. Reason? They don't invest, they speculate. Right? Okay. So ये स्लाइड है. अब ये सेफगार्ड्स हम लोग कल फ्रेश मूड में डिस्कस करेंगे. तो उसमें ये अगर स्लाइड का आप कोई अगर कुछ फोटो लेना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, तो मैंने रख दिया है बोर्ड पे. यू आर फ्री टू कॉपी दिस स्नैपशॉट, अपना स्क्रीनशॉट ऑल्सो, और प्रेजेंटेशंस भी हम लोग शेयर कर लेंगे. डोंट वरी. सो आई थिंक आई हैव एक्सीडेड 20 minutes above the allotted time. वेरी सॉरी, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट के आप लोग थोड़ा सुन रहे थे तो मैं बोलते ही जा रहा था. सो पद्मा मैडम, ओवर टू यू. एकनाथ सर, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ रिसोर्स पर्सन फॉर दिस फर्स्ट सेशन. एंड अगर आप सब साथ देंगे तो कल का सेशन भी इससे या इससे ज्यादा मजेदार बनाएंगे. So over to you, Padma madam. I will mute myself. It's over to you. Thank you, Prithviraj sir. Padma madam, someone please take over from here. Thank you, Prithviraj sir. Padma madam is also here. He has some net issues, I guess. I think yes. All the participants are requested to mute. Participants, please mute your video. All participants, please mute your video, please. Yes, sir. Thank you very much, sir. Actually, when you start your lecture or your session, you have changed the definition of investment. Actually, I was thinking ki investment means like we can investment house, properties, gold, shares. But yes, how to invest, when to invest, what parameter we have to see, all this function a factor I have never thought actually. Like saving. So nice of you, sir. Saving means what? Income minus expenditure is your saving, and apart from that saving, how you invest that in different avenues. Similarly, you have given the brief actually in detail idea about the investment avenues like gold, properties, fixed deposit, recurring deposit, shares, mutual fund, and one I can say crux of this session is MA. Investment of the is MA, that is mutual fund. Yes. And again, very important thing that what criteria we have to see while selection the investment avenues. And one more thing, I remember that व्यापार. Yes. व्यापार में प्यार नहीं होता है. Actually, it was a lively session, and नहीं करना है सर, बिल्कुल नहीं करना है. Everybody was enjoying the session. I'm getting the chat also that excellent, or then your very different kind of what this explanation pattern was this. And on behalf of Mahatma Knight Degree College, all the teacher participant, our principal, our teachers,
and everybody, management. I would like to thank you very very much that you have accepted our invitation and conducted this session so nicely and fruitfully. Thank you very, very much, and thank you all the participants for cooperating and listening this session very patiently. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Hello, hello, Dr. Eknath. Yes, Hello. sir. Yes, sir. Parag, sir. Please tell about the participant certificate. Is all Yes, what sir. to do that exact after covering all 6 sessions or No, no, no. one by one session? One by one session. After this, I will Okay. send one feedback form in our group. So you Yeah. have to fill this feedback form, and within 48 hours. Actually, I'm saying 48 hours because of contingency. You will get Yes. the certificate as early as possible within 3-4 hours also. But yes, Yes. for a contingency